clarifications from them. We will be getting so many clarifications, and many of us our doubts will no more be there. So with this note, I would request the convener of the CA Study Circle, CA Shantanu Sen, and the president of the Salt Lake City Chartered Accountants Association, CA Shumantro Guho, to please speak a few words before we can hand over to the speakers. Yeah, hello. Yes, yes, you are audible. Yeah, okay. You need to be a bit louder. I think there's a problem with the mic. Okay. Can you hear me right now? Yes, yes, yes. Okay, fine. So I think let's not waste much more time on this, and let's go with the seminar start away right away. And we just first speaker. I think Robin Katie is the first speaker. So let us start the seminar. Okay. Thank you very much. Okay, and Mr. Shumantro Guho, the president. Yes. Just yes, you have nicely introduced both the speakers, and this is a timely topic, as we all know. And for that matter, our study circle has been regularly holding since the month of July one VCM every month. This is the third. Sir, your voice is muted. Voice. Shumantro, voice. His network has hanged. Since it is getting a little more difficult to physically interact till 31st of October 2020, the institute has decided that a member can clock in 15 CP hours through the virtual mode. So that notification has come only today. So after September, of course, nowadays everyone is a bit busy with audits and all, because not only GST audit of 810, but other audits have also started, and October is a festive month also. But we'll try to do something before the Durga Puja starts, at least by the third week of October or second week of October, some other program. So without wasting much time, I think we should now hand over the proceedings to the speakers to take us through the annual return and the reconciliation form, the 9th. Thank you very much. Okay, Gagan. Okay, sir, Please I'll take share over. that Please screen take quickly. over. Yes. I hope the screen is visible, right? Yes. Good evening, members. It is my pleasure to share my experience. I'll not say knowledge at this moment. Share my experience of audit. Last year, when we were doing 99C audit, we were all saying this is the first time that we are doing this audit. So this is going to be a really challenging for us because everything is new. Surprisingly, this year also I have a similar feeling that even this time it is feeling that yaar ye to pehli baar hi kar rahe hain. Kyun? Because there are a lot of issues which has not been taken care. So we'll try to run through it, and we'll take there are diverse opinions on this matter. So we'll take Abhishek ji's views as well. And what I will do, there is an Excel sheet that Abhishek ji and myself we have prepared, wherein we have discussed around 25-30 cases, scenarios rather, and we'll share that Excel sheet with Debayanda. Probably he can share with all of you, and probably all your questions somewhere will be answered in that. We'll see through it. So quickly, first let me take you, see, we will make the discussion on the premises. We will make our discussion on the premises that for 17-18, all of us have somewhere or the other seen the form, and we also remember the flow of the form of GSTR 9 as well as 9C. थोड़ा तो हम लोग को back of the mind में recall करके चलना है. It is not even
8 days left for this month. I will say 7 days. Date extension hoga nahi hoga, we have discussed. And probably if they have an extension, they will only extend it for 1 month. Abhi starting mein September 30th से 31st October ही करेंगे इन लोग. So not that we एक बार में अभी December कर देंगे, keeping other audits in mind. They will not do that. They will probably do it till 31st of October. So quickly I'll take you through the flow. So that flow will be required for discussion of points. GSTR 9, there is table 4 for taxable supplies, table 5 for exempt supplies. 6 is for input tax credit taken, 7 is for input tax credit reversed. Year wise I will come, abhi rukte hain. 8 is a table which we have to somewhere ignore. I will tell you why. Table 9 is the payment of tax. What is the tax liability and how much you have paid through cash, how much you have paid through credit. Quickly recap: 4 output taxable, 5 output exempt, 6 input taken, 7 input reversed, 8 something we have to ignore but fill it, 9 payment of tax. Now these are for a particular set of period, that जो आपका current year का liability है वो आपको वहां पे show करना है. Now what is 10, 11, 12, 13, 14? This is second set, part 5, wherein any tax payments for current year paid in next year is recorded, or any input tax credit of current year claimed in next year, and vice versa as well. Output tax reduced or input tax reversed, all are captured in 10, 11, 12, 13. 10 is for disclosing tax payable, 11 is for reducing tax payable, 12 is for reversing credit, and 13 is for payment of taking credit. Now 10, 11, 12, 13 bata diya. Now 14 tells tax paid because of next year disclosures. Current year disclosure जो हम लोगों ने अगले साल किया, उसका tax payment कितना किया is table number 14. Now this table number 14 is going to be very important and pivotal in current year's annual return and audit. How? We will keep and just see it. So we'll take table 4 से लेके 9 तक एक section है, 10 से लेके 14 तक एक दूसरा section है. So what is that? We are all discussing GSTR 9. So 17-18 का एक बार समझते हैं, same terms to 18-19. Always there is a question कि Gagan, in GSTR 9 what figures do we have to give? Is it 3B, is it R1, or what is it? So the answer is 3B. No, it is actual tax liability which is there in your books. Try to understand. Whatever outward supplies we have, just a moment, yes, whatever outward supplies we have as per the actual tax liability of books for 17-18 can either be disclosed in 17-18, or it can be disclosed in 18-19, or it would have been paid subsequently 19-20, or probably even till now. So only 3 scenarios are possible for 17-18. Either in 17-18 or in next year, that is 18-19, and for third case is not even paid in next year, that is after 19-20. Now, very simple what we had discussed, tax of 17-18 liability disclosed in 3B of 17-18, that will come in table 4 and 5. Whatever we have disclosed in table in next year 18-19, see for 17-18 I am taking next year 18-19 क्योंकि वो adjustments पूरे साल तक allowed था, removal of difficulty order आई थी. 17-18 ideally in GST current year adjustments next year 6 months time होता है, September of next year तक कर सकते हैं. But for 17-18 that was extended for 1 full year. That is why I am saying 18-19. But when we will be discussing 18-19, then we will be discussing adjustments done in 19-20 till September. 6 महीने का. So that has to be disclosed in table 10 and 11, and whatever was disclosed after that allowable period will be again moved to table 4. So table 4 gives you actual liability disclosed in 17-18 and any
missed out liability also is shown in table 4. याद रखना है 17-18 में we have done this. Same with inward supplies. 17-18 का 17-18 में जो हमने दिखाया वो 6-7 में ले लिया, 18-19 का 12-13 में डाल दिया, और जो छूट गया था वो हमें छोड़ना पड़ा था. Similarly, tax payments भी हम लोगों का इसी हिसाब से आता है. Whatever tax you have paid in 17-18 comes in table number 9. Auto populated हो जाता है. Whatever tax you have paid in 18-19, very important. Tax of 17-18 paid in 18-19. That was disclosed in table 14. Manually डालना था ये चीज. We will see table 14 में क्या फिगर जाता है. And whatever tax was paid in 19-20, DRC 3 से हमने पेमेंट किया था. ये complete scenario है. Now look at this with respect to 18-19. The biggest problem at this moment we have. Now let us read it. 18-19 में क्या करना है? The total outward supplies of 18-19 which is disclosed in 18-19, that will be shown in table 4. Whatever has been disclosed subsequently in 19-20 till September 19, that will be disclosed in table 10-11, and जो भी उसके बाद करेंगे या अभी हम जो करेंगे, that will be added to table 4. The problem is पिछले साल जो हमने एडजस्टमेंट किया 18-19 में, वो तो हमने लास्ट ईयर के टेबल 10 में दिखाया. उसको इस साल के एनुअल रिटर्न में कहां दिखाना है? देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर दैट. नाउ द क्वेश्चन इज उसको कहां दिखाना है और उसका इंप्लीकेशन क्या होगा. फर्स्ट लेट अस डिस्कस ऑन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड वील टेक एन एग्जांपल एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. 17-18, let us say my turnover as per books is 1 crore. Out of that 80 lakhs I have disclosed in 3B of 17-18 and I have paid tax on 80 lakhs in 17-18. The differential 20 lakh I have paid in 18-19. So last year when I have filed my annual return, under table 4 I would have disclosed 80 lakh and under table 10 I would have disclosed 20 lakh. Now what is table 14? Let me quickly take you to this. See, this is 10, 11, 12, 13 and 14. It talks about tax declared, tax reduced, reversal of ITC and claim of ITC. Current year का जो अगले साल किया. Table 14 is differential tax paid on account of 10 and 11, means output tax. Whatever you have paid. So in table number 14, for this example, I would have mentioned 20 lakhs. That 20 lakhs का payment 17-18 का था, but मैंने उसकी payment 18-19 में करी. Done. Last year close. Coming to current year. Quick recap of the figures of last year. Total turnover 1 crore. Tax to be paid on 1 crore. However, 17-18 3B में I have disclosed 80 lakh and 18-19 में I have disclosed balance 20 lakh 3B में और हमने tax भी payment कर दिया. Done. Current year, my turnover is 2 crore rupees, let us say. Okay. I have disclosed all the information in 18-19 only correctly. Along with that, I have also disclosed 20 lakhs of previous year. So in my 3B, total 12 months 3B of 18-19, how much I will have? I will have 2 crores for 18-19 plus 20 lakhs of last year. 2 crore 20 lakh. Now where to disclose that 2 crore 20 lakh? Question is table 4 if we disclose 2 crore 20 lakh, or how do we disclose it? Because let's say GSTR 1 also you have filed correctly, it will be showing 2 crore 20 lakh. But is it that you have to disclose last year's liability paid in current year also? The answer is, my view, no. You don't have to do that. So how to disclose? Now try to understand. I am in 18-19. Table number 4, my total actual turnover for 18-19 is 2 crores plus 20 lakhs of previous year also paid this time. So what I will do, table number 4, I have to fill all the tax liability of 18-19 paid in 18-19. How much is that? 2 crore rupees. Of 18-19,
paid in 18-19. That is 2 crore rupees. 20 lakh is of 17-18 paid in 18-19. So that will not come in table 4. Okay, done, Gagan. No issues. Now what will happen? Once table 4 I have filled for 2 crores. And then when I move to taxes paid, table number 9, it has 2 portions. One is tax payable and one is tax paid. Tax payable will be equal to the above column, which is table 4, 2 crores. Tax paid would be your actual 3B set off. You cannot change that. And how much would that be? That would be 2 crore 20 lakh, because 18-19 के 3B में तो हमने 2 crore 20 lakh भी दिया, टैक्स दिया है पिछले साल का लेके. So your table 9 tax payable will show 2 crores, which is actual for that year, plus your tax paid will show 2 crore 20 lakh. See, table 9 doesn't have a differential column. What is your liability minus whatever you have paid? But you have to do it manually, and table 9 will show you a difference of tax paid extra 20 lakh. Now, remember last year, table 14, I have disclosed that what was current year's liability paid in next year, I have already disclosed 20 lakh. So what will government do? What will the officer do when they do this assessment? They will take out 18-19 annual return. They will check, okay, how much was your actual liability for 18-19? Okay, then they will come and see table 9, how much tax you have actually paid. From that figure, they will straight away deduct last year's table 14. That whatever you have claimed in last year that I have done adjustments, they will subtract that. So हमारा table 9 कैसा दिख रहा है? 20 lakh paid extra दिख रहा है, और 20 lakh paid extra वो हमने last year का है, तो वो वहां से match हो जाएगा. Difference will be 0. There will be no short payment. It will show an excess payment, and that is equal to last year's deferment. Now coming to 9C, I'm jumping from here to 9C. When we do turnover reconciliation, what will be the turnover as per books? Will it be 2 crores or 2 crore 20 lakh? It will be 2 crores. So we start with turnover as per books 2 crores and end from a figure which is pulled from annual return. And that figure, because in table 4 I have given only 2 crores, the GST figure, GSTR 9 figure will also be pulled at 2 crores. So in 9C, there is no turnover difference. Reconciliation में कोई difference नहीं है, which is correct. There is no difference in reconciliation, and you can proceed it that way. This is my view of treating how to do it, because there is no clear guidelines from the government on how to deal with it. Different people will have different views. At this point, I would like to bring in Abhishek ji. He has switched on his video. Abhishek ji, what are your views? We were discussing on this. What are your views on how to deal with this matter? Over to you, Abhishek ji. Sir, firstly, there is no my view or your view. I think it is our view. True. Agree to both the views. I'll be just speaking about the difference should be shown in GSTR 9 or GSTR 9C. True. You have explained about the difference to be reflected itself in GSTR 9, but I'll speak on the perspective कि आज से 2 साल 3 साल बाद जब असेसमेंट करेगा ऑफिसर, तो वो आपके 17-18 का और 18-19 का हो सकता है अलग अलग असेसमेंट कर रहा हो. तो I'll go with the other view also, if you agree. If at all you agree, I'll go with the other view also. The difference should always be reflected only in GSTR 9C for the SSEs for whom GST audit is applicable. Now, since we are discussing for 18-19, let us be very clear that GST audit is applicable only for SSEs having turnover of more than 5 crores. We have seen, of course, seen in last few of our sessions that people are still confused that GST audit is applicable for turnover of more than 2 crore rupees. For 18-19, it is 5 crore rupees and not 2 crores. Now coming to the matter of the tax declared of 17-18 in 18-19 and 18-19 in 19-20 and the combinations of the three. 1 को 1 को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में डालना, ये सब जो भी है. Let us go one by one. Sir, आपके एग्जाम्पल को ले, considering your example, you said कि 17-18 में जो टैक्स दिया है
उसको 17-18 के जो 17-18 का टैक्स 18-19 में दिया है उसको GSTR 9 में हमने 17-18 में टेबल नंबर 14 में दिखाया। तो आज हमको 18-19 में टेबल 4 में नहीं दिखाना है, राइट? अगर मैं दिखा देता हूं तो क्या होगा? I consider while GSTR filing of GSTR 9 of 18-19 जितना भी 3B में लाइबिलिटी पे किया है उतना रुपया मैं दिखा दूंगा। I am only considering that I have paid the complete liability of 18-19 plus additionally 17-18's missed out liability, which was reflected in table 14 of 17-18's GSTR 9. If we show it in table 4 of 18-19, in table 9 there will be no mismatch, but my GST payable amount would increase from which is actually payable as per the books of accounts. So when I file my GSTR 9C, at table 9 of GSTR 9C, the tax payable amount would be as per books of accounts, but when it will be reconciled with GSTR 9, there would be an excess payment being reflected in GSTR 9C. At that point of time, as an auditor, I would give a comment that this excess payment is on account of differential tax liability required to be paid by the, which was required to be paid by the SSE during the financial year 17-18, and he had said that, or I might say that उसने एक commitment की थी 17-18 में, और उसने उस commitment को पूरा करते हुए 18-19 में उस tax payment को, liability को payment कर दिया. This comment should, I think, should suffice my responsibility as an auditor, and also would make it amply clear before the authorities कि जितना भी differential amount है वो किस तरीके से payment हुआ है. Of course, in your part also, we can include the similar comment in GSTR 9C without having a difference, actual difference, and which you would suggest that it might also have a clarity on the officers. So I think we have given both the views. And now again over to you. Correct. So that is what I said. Beauty है अभी GST का कि हम सब स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं हम सब इसको ट्रायल एंड एरर करके सीख रहे हैं, unless till the time government comes out with a clarification. And as we have already said, audit is an art of reporting. Audit में साइंस नहीं है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है. It's the representation, the report preparation is always an art. So it is your acumen कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. Do you want the reconciliation in 9C to be matched and you want the difference to be reported in 1890 GSTR 9 because there is no field for it? ऐसा कोई कॉलम नहीं डाला बोल के ये डिफरेंस आ रहा है. इन लोगों ने ये तो सोचा कि इस साल का एडजस्टमेंट अगले साल करना है, उसके लिए तो कॉलम बना दिया. अगले साल का नहीं सोचा कि अरे अगले साल तो जाके पिछले साल का एडजस्टमेंट आएगा, तो उसके लिए भी एक कॉलम बना है. तो इट इज योर कॉल whether you want to take it in 9 or you want to take it in 9C. I would prefer taking care of it in 9 for one more reason. अभिषेक जी आप बताइएगा आप इस चीज से सहमत होंगे कि नहीं. जब हमने 17-18 की ऑडिट की थी तो हमने एक प्रिंसिपल बनाया था that, and that principle of 17-18 is also confirmed by the various press releases by the department, that 17-18's liability disclosed in 17-18 should be coming in 4, disclosed in next year should be coming in 10, and not yet disclosed should again come back in 4. Keeping that same thing in mind, 18-19's liability disclosed in 18-19 should be coming in 4. Since there is no separate column, I should not be including last year's liability, and that difference in 9, which is a positive difference that you have paid extra, should be there. That is just my view. And yes, you have correctly mentioned that we can always go back to 9C and give a note for it. हम कर सकते हैं वो चीज. सर एक और पॉइंट पे एनलाइटन करिए ना सर. हाँ सर. और लेट अस टेक इट फर्दर. 19-20 का जब हम लोग भर रहे होंगे, there might be a scenario कि 17-18 में I had to pay 1 lakh rupees extra. 18-19 में I did not pay that 1 lakh rupees of liability. I did not actually pay 1 lakh rupees of liability of 17-18.
In 1819, I actually paid the complete liability that I was liable to pay in 1819 itself. Okay. Now I have shown as payable as say 5 lakh rupees, out of which 1 lakh would be reflecting as paid for 1718. If you consider your adjustment in table 4, if I consider it as 5 lakh rupees only. Now in table 3B, if I do not give, and फिर मैं अगर जाके 11 में I do not mention anything, would not it be reflecting a wrong position कि 1718 I have not paid, but again it is reflecting in 1819, and 1819 I have to pay again. So Abhishek, if I will reframe your question for my better understanding, 1718 में जितनी टैक्स लाइबिलिटी थी, मान लो 1 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी थी, मैंने 3B में 99 lakhs डिस्क्लोज किया था, 1 लाख छूट गया था, which while filing GSTR 9 for 1718 I mentioned in table number 10 that ये 1 लाख रुपया मैंने अगले साल दे दिया. Yes. I have mentioned this. However, I have actually not paid in 3B. हमने 3B में पे नहीं किया, but हमने टेबल 10 में डाल दिया था कि it has been paid. I forgot to pay. Now when I come to 1819, let us say my total actual turnover for 1819 is 2 crores. और फॉर योर एग्जाम्पल आप जो बता रहे हो 5 लाख है मेरी टैक्स लाइबिलिटी, 2 करोड़ है, चलिए सर ठीक है. 2 करोड़ है, मुझे पे करना था 2 करोड़ प्लस पिछले साल का 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख 3B में पे करना था, बट मैंने पे नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 करोड़ ही पे किया. तो सरकार क्या ये आपको नहीं बोलेगी कि सिंस 3B में द ब्यूटी इज आप मंथ वाइज तो रिपोर्ट करते नहीं हो लाइबिलिटी, सरकार आपको बोलेगी कि देखो या तो आपने 17-18 की लाइबिलिटी अभी तक जमा नहीं की, आपने 18-19 पूरा कंप्लीट कर दिया बट 17-18 अभी नहीं जमा दिया, तो आप मुझे ब्याज, टैक्स तो लेगा ही सरकार, ब्याज 17-18 से दो. ऑल्टरनेटिवली आप ये where I wanted to reach कि अगर मैं 9 में अगर डिस्क्लोज कर दूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा. कैसे सर? सॉरी प्रोस्पेक्टिवली लगेगा. एग्जैक्टली 9 में अगर मैं डिस्क्लोज करता हूं रेट्रोस्पेक्टिवली तो इट विल बी प्रोस्पेक्टिव. नाउ द सीन इज 1718 का एनुअल रिटर्न हमने तो फरवरी 20 में भरा है. हाँ, जब 1819 के ऑलरेडी 3B लग चुके थे. हाँ, हाँ. प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जिस भी आदमी की लाइबिलिटी ऑडिट में आई है उसने तो 1819 में पे नहीं किया है. हाँ. मोस्ट ऑफ द केसेस टेबल 10 और 11 में दिखा रखा है. उसको एडजस्टमेंट करते हुए हमको 9 में अगर हम सेट ऑफ कर देंगे तो एग्जैक्टली माय पॉइंट. परफेक्ट है सर, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. सर ऑलवेज विथ यू. तो आई होप दिस मैटर इज क्लियर. द पॉइंट इज whatever you are disclosing yourself, सरकार उसको पकड़ेगी और उसको बेस मान के चलेगी. We will see how it will be done for ITC. Now moving on to ITC, same situations ऐसा है. ITC of 1718, 17-18 का ITC हमने कुछ जो 17-18 के 3B में ले लिया, that we have recorded in table 6. 7 was reversal. जो क्रेडिट लेना छूट गया था और हमने उसको नेक्स्ट ईयर में लिया था, दैट वी रिपोर्टेड इन टेबल 12 एंड 13. 13 वाज फॉर टेकिंग, 12 वाज फॉर रिवर्सल. डन. और जो एकदम भी छूट गया था वो लीगली छूट गया था. अभिषेक जी अभी बताएंगे नहीं, अगर लीगली नहीं छूटा था उसको भी हम कैसे लेंगे, वी विल टेल यू, बट उसको एक बार साइड में रखते हैं. 17-18 की क्रेडिट, लेट अस टेक एग्जांपल. इनपुट टैक्स क्रेडिट for 1718 was 10 lakh rupees. As per my books of accounts, that means whatever I have recorded in my books of accounts for 1718, वो मेरा 10 लाख रुपया था. However, in my GSTR 3B, I have taken credit of only 8 lakh rupees. 2 lakhs was missed credit which I have taken in 1819. And last year, when we have filed the annual return, I would have disclosed that 2 lakh rupees in table number 13. Current year credit claimed in next year. Okay. Last year के 9C में भी हमने ये figure disclose कर दिया होगा. Okay. Now coming to this year's 1819's workings and 3B. The total credit for 1819, let us say, is 25 lakh rupees. Plus पिछले साल का 2 लाख होगा आपको लेना. तो आप इस बार के 3B में 27 लाख रुपीस का क्रेडिट लोगे. ओके.
मान लो सिनेरियो 1, आपने वो पूरा 27 लाख 12 महीने के 3B में मिला के ले लिया करेक्टली, वॉट एवर यू हैव आइडेंटिफाइड लास्ट ईयर यू हैव टेकन इट, 18-19 में 27 लाख ले लिया. नाउ व्हेन यू स्टार्ट विद टेबल 6, दिस वन, टेबल नंबर 6 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो दिस स्टार्ट्स विद एन ऑटो पॉपुलेटेड फिगर फ्रॉम योर 3B, कि एज पर योर 3B आपने टोटल कितने की क्रेडिट ली है. यहां पे टोटल 27 लाख रुपए आएगा क्योंकि आपने 3B में 27 लाख रुपए लिए. नाउ इट देन आस्क्स यू टू गिव बाइफर्केशंस into various heads. What is your all other ITC, what is your RCM ITC, what is the ITC on import of goods, import of services, and the breakup of inputs, capital goods and input service. This portion is an optional for 18-19 as well. वो भी डिस्कशन बाद में करेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज गगन, ये जो ब्रेकअप हम यहाँ पे डालेंगे ना 6B-C-D में, ये हम किस फिगर का डालेंगे? मेरे एक्चुअल फिगर्स फॉर 18-19 का 25 लाख डालना है कि 27 लाख रुपया पूरा डालना है जो मैंने 3B में क्लेम किया है? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इसके पीछे का एक लीगल अंडरस्टैंडिंग. अभिषेक जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. द हेडिंग फॉर टेबल 6 इज डिटेल्स ऑफ ITC availed during the financial year. Now the question is, what is availment of credit? मैंने मन में सोच लिया कि इस चीज का क्रेडिट मेरे को मिलेगा, मैंने बुक्स में भी रिकॉर्डिंग कर लिया. इज दैट अवेलमेंट? और टेकिंग द मनी इन माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट? वी हैव टू थिंक ऑन दैट. तो एक कंसेप्ट जीएसटी में हम जानते हैं, थोड़ा लाइटर नोट पे इसको समझते हैं, कि सरकार को आपसे अगर कुछ लेना है ना तो वो ट्रांजैक्शन डेट से लेगा जब हुआ था. एनी टैक्स लायबिलिटी दैट गवर्नमेंट हैज टू collect from you, they will take from the original date, back date से लेगा. But if they have to give you some benefit, like पुराना ITC अगर देना है तो बोलेगा नहीं, ITC तो हम आपको प्रेजेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देंगे, प्रोस्पेक्टिव आज ही से देंगे, वो आपको बैक डेट से नहीं मिलेगा. सरकार कुछ लेगा आपसे तो बैक डेट से लेगा, सरकार आपको कुछ देगा तो फ्यूचर डेट से देगा. कीपिंग दिस इन माइंड, क्रेडिट विच आई हैव taken in 3B of 18-19, no matter it is pertaining to 17-18, but हमने लिया उसको अगर 18-19 के 3B में है, 18-19 के क्रेडिट लेजर में वो हिट किया, so it is a credit availed in 18-19 as per GST. तो अगर वो 18-19 में availed हुआ है 2 लाख पिछले साल का, तो वो 2 लाख तो यहाँ पे हिस्सा बनेगा ना उसका भी, whatever you have availed during the financial year. So my view would be 27 lakh will be auto populated, which is 25 lakh for this year plus 2 lakh of previous year. You disclose the entire 27 lakh in these breakups. Accordingly, table 7 के बाद जो आपका net ITC आ जाएगा, that will also be 27 lakh. Jumping to 9C of 18-19, audit जब हम करेंगे, table number 12, वहां पे वो आपको स्टार्ट करता है बुक्स के हिसाब से आपका ITC कितना है. तो हाउ मच इज बुक्स के हिसाब का ITC? 25 लाख. 12B एडजस्टमेंट बोलता है पिछले साल का ITC जो आपने इस साल लिया, ये फिगर हम कहां से लेंगे? पिछले साल के ऑडिट में जाके देख लेंगे कि कितना डिस्क्लोज था, वो फिगर यहां आ जाएगा 2 लाख. 27 लाख पहुंच गया. दैट विल बी कंपेयर टू द एनुअल रिटर्न्स फिगर 7J, नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, दैट अगेन विल बी 27 लाख. रिकंसिलिएशन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मैच हो गया आपका. दिस इज द करेक्ट डिस्क्लोजर फॉर मिस्ड आउट ITC. इसमें प्रॉब्लम कहां आएगा वो हम समझते हैं, फिर सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे. दिस वन, यहां पे 27 लाख आया ना, हमने उसका ब्रेकअप यहाँ पे ऑल अदर ITC भी 27 लाख लिख दिया, 27 लाख. ओके, वेरी गुड. गगन, ये टेबल नंबर 8 है, कहां गया ये वाला? 8A में ना 2A का फिगर आता है. अब 2A तो डिपेंड करेगा सामने वाले के R1 पे, और मान लो सामने वाला तो R1 25 लाख का ही लगाएगा, 2 लाख का तो वो पिछले साल लगा चुका होगा. सो माई 8A विल बी 25 लाख, पर 8B में जो ऊपर से पुल करेगा ना, देखो 6B से, वहां पे तो 27 लाख आ जाएगा. तो यहां पर ना एक डिफरेंस दिखेगा सरकार को कि 2A में 25 लाख दिख रहा है और आपने क्लेम किया 27 लाख.
तो इस डिफरेंस को देख के सरकार भड़क जाएगा और बोलेगा अरे डिफरेंस आ गया। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला टेबल 8 को इग्नोर करके चलो, क्यों उसको समझेंगे, बट टेबल 8 में डिफरेंस आने से रहने दो। देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच टेबल 8 विल हैव अ डिफरेंस, बट इट शुड नॉट बी आवर प्रायोरिटी टू मेक दिस डिफरेंस ऑफ टेबल 8 0। इसको रहने दो डिफरेंस। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिसके कारण इसमें डिफरेंस आ सकता है। मान लो सामने वाले ने R1 ही नहीं फाइल किया तो भी तो डिफरेंस आएगा। मान लो आपने गुड्स खरीदा एक साल में, उसका क्रेडिट आपने दूसरे साल में लिया बिकॉज गुड्स वर इन ट्रांजिट, देयर कैन बी लॉट ऑफ इश्यूज। तो डिफरेंस इन टेबल 8 कैन बी देयर। तो ये मेरा ओपिनियन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड आपका जो फिगर 3B में लिया है, सी आई एम फर्स्ट टाइम सेइंग कि टर्नओवर जब आप डिस्क्लोज करोगे, आउटपुट टैक्स डिस्क्लोज करोगे तो उस साल का डिस्क्लोज करो। 3B में जो दिया उससे मतलब नहीं है। बट आईटीसी जब आप डिस्क्लोज करोगे तो अब जो 3B में दिए है वो डिस्क्लोज करो। आपका बुक्स का फिगर यहां नहीं चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज लॉजिक, आउटपुट टैक्स सरकार बोलेगा जब से लायबिलिटी था हमको तब से चाहिए, और इनपुट टैक्स बोलेगा जब तुमने क्लेम किया 3B में हमको तब से ही अवेल दिखाना है। सो दैट इज द लॉजिक। और इस लॉजिक से आपका यहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा और आपका 9C में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभिषेक जी, ओवर टू यू, आपका व्यू इसमें क्या है? सर परफेक्टली सेम टू योर व्यू, नो चेंजेस एट ऑल। सर कुछ तो आप बताएंगे इसमें वैल्यू एडिशन, कुछ और अगर कोई दूसरा सिनेरियो अगर हमें सोचना है, या फॉर दूसरा, अब दूसरा सिचुएशन सर अगर आप बताइए। ये तो हमने बोल दिया कि पिछले साल का आईटीसी भी 2 लाख ले लिया 18-19 में। मान लो आपने ठीक ही बोला, हमने तो ऑडिट आके 19-20 के बाद ही करी है, तब तक तो 9Cs सारे 3Bs लग चुके थे 18-19 के। मान लो हमने 18-19 में 25 लाख ही लिया 3B में भी। Now I'll talk off record. सुनना चाह रहे हैं, लेट अस टॉक ऑफ रिकॉर्ड कि अगर 18-19 में मैंने लिया है कि नहीं लिया है मेरे को कैसे पता? 3B में तो क्रेडिट लिया है, किस इनवॉइस का लिया है दैट आई डू नॉट नो। नाउ बिफोर गोइंग इनटू क्या होगा, लेट मी ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ ऑल द लिसनर्स कि 2B बोल के एक महाभारत आ गया हमारे जीवन में। अब मैं देख रहा था उसकी एक मैचिंग टूल है, मैचिंग ऑफलाइन मैचिंग टूल। पिक्यूलियरली उसमें एक सेक्शन है which is ITC not to be availed. This 2B is applicable or available with effect from July 2020. This just 2 months ago. You want to ask a query? General check of contact data. Sir? कंटिन्यू अभिषेक, कंटिन्यू। I think Gagan, you have admin rights. You can mute. I'm unable to see them. नहीं, वो नीचे ना एक पार्टिसिपेंट्स बॉक्स के नीचे एक म्यूट वाला ऑप्शन है, मैंने अभी कर दिया। ठीक है ना, कभी भी आपको लगे तो आप भी कर सकते हो, दोनों के पास राइट है। और फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके, Thank you so much, sir. So now the 2B part is कि 2B में एक ITC not to be availed बोल के इन्होंने एक सेक्शन दे दिया है। We were seeing कि अभी 18, 19, 17, 18 इसके रिकंसिलिएशन में जितने 2A में इनवॉइसेस नहीं दिख रहे थे, तो पीपल वे पुशिंग देयर सप्लायर्स कि भैया 2A में लगाओ। कुछ जिन लोगों ने जुलाई 2020 से अभी तक अपना GSTR 1 फाइल किया है, भले ही वो इनवॉइस 17-18 का हो या 18-19 का हो, ITC not to be availed में वो वाला अमाउंट आ जा रहा है। And the reason says that return has been filed after annual due date. एनुअल टाइमलाइन के बाद में जो GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उसका इनवॉइसेस नाउ टू बी शोस टू अस कि ये एप्लीकेबल नहीं है। आई एम मतलब नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेरी वाज 17-18 का जो क्रेडिट है हमने वो 18-19 में एक्चुअली और फैक्चुअली नहीं लिया था, बट GSTR 9 में बोल दिया था कि लिया था। ये इस कंसेप्ट के ऊपर बोला था कि ये फीफो बेसिस में चल रहा है, जितना 18-19 में क्रेडिट लिया है वो सबसे पहले 17-18 का लिया है ये मान के चलेंगे, और उसके बाद 18-19 में का अगर कुछ बच गया तो वो 18-19 में लिया ये बोलेंगे। So my problem is once 2B is applicable in law and order और उसको in form and fact जब डिपार्टमेंट देखने लगेगा, तो आज अगर जुलाई से लेके अभी तक जितने 2A GSTR 1 फाइल हुए, we have a data all together कि इन्होंने GSTR 1 फाइल बाद में किया है तो हमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा।
I perfectly differ from this view कि मेरे को credit नहीं मिलेगा क्योंकि GSTR1 has nothing to do with my credit availability so far as just limitation is only up till 36/4. That too also we can go into litigation, but still department has a clear cut view with now Gagan हमेशा you always said कि सबसे पहले हमारे पास GST का लॉ है, उसको गवर्न करने के लिए GST काउंसिल है, उसको गवर्न करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है और इन सबको गवर्न करने के लिए GST का कंप्यूटर सिस्टम है. तो नाउ व्हेन कंप्यूटर सिस्टम गिव्स अस 2B में डिटेल्स कि ये इनवॉइस का क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज लॉट ऑफ नोटिसेस और डिमांड्स कि आपने इतना रुपया का क्रेडिट लिया है. आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे 2A देख के, अगर वी हैव कम अक्रॉस फेक क्रेडिट इश्यूज एंड ऑल दैट, तो वहां कई पार्टीज के पास 2A में किसी पार्टी का अगर क्रेडिट दिख रहा है तो डिपार्टमेंट हैज ब्लैंकली सेंट नोटिसेस कि आपके 2A में इस आदमी का क्रेडिट है, यू पे इट बैक. दे डोंट इवन बॉदर टू आस्क अस कि क्या आपने इसका क्रेडिट लिया है या नहीं लिया है. आई एम लुकिंग टुवर्ड्स अ लिटिगेशन ऑफ thousands of hundreds and thousands of cases on the part कि वो ये निकाल के देंगे, बोलेंगे इस आदमी ने GSTR1 बाद में फाइल किया है, अब इसके बारे में टैक्स भर दो. तो मेरे फीफो बेसिस की तो क्या होनी है भगवान जाने. अब सर आपके क्वेश्चन का आई थिंक दिस इज द आंसर कि 18-19 का फीफो बेसिस पे ले लिया है तो ऑल गुड, और नहीं लिया है तो फिर यू मिस्ड इट आउट. परफेक्ट सर. और सर इस पॉइंट पे अगर अपने व्हाट इज योर व्यू दैट द डिफरेंस of that 2 lakh in our example, 27 lakh and 25 lakh, if I disclose यहाँ पे 25 lakh then मेरा table 8 मैच करेगा, but if I disclose 27 lakh तो मेरा table 8 में difference आ जाएगा. टेबल 8 के लिए तो हमारे पास एक प्रेस रिलीज है. वो प्रेस रिलीज बोलता है कि टेबल 8 का कोई अस्तित्व नहीं है, उसमें जो दिखा रहा है उसको भूल जाओ. Press release strictly says the SSC need not bother about any differences reflecting in GSTR, your table 8 of GSTR9. Just forget about it. उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे. हालांकि again, today only I came across a notice जहाँ पे ये 8D में जो difference दिख रहा है, that was negative for a person to the extent of 20, 20 and 60 lakh rupees. तो 1 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेज दिया गया है SSC को. I have the notice in my hand itself. आज ही वो it is coincidence, आज ही वो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने लिखा है 17-18 में you have declared that you have taken eligible credit of 1 crore rupees, so kindly pay. So of course we will come across such situations, but still we have to, that is why we are there. I think our association is having this session only for this. Perfect. अच्छा अभिषेक जी, आपने जैसे प्रेस रिलीज का हमें जिक्र किया, तो हाउ अबाउट इन दैट प्रेस रिलीज यू हैव करेक्टली मेंशन्ड व्हिच सेज कि डू नॉट बॉदर अबाउट द डिफरेंस. देयर दे हैव आल्सो मेंशन्ड दैट यू मे फॉर 18-19 एंड 17-18, 17-18 तो खत्म, यू मे नॉट फिल दिस पोर्शन ओवर हियर बिकॉज द डिजाइन ऑफ दिस फॉर्म इज इनकम्प्लीट. आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दो सारा. Exactly. प्रिपेयर दिस इन अ पीडीएफ, एक्सेल में बनाओ, वहां पे क्लियरली वो लाइन लिख दो, एक लाइन ऐड करके अपने तरफ से कि ये 2 लाख पिछले साल का है, और वहां पे डिफरेंस को 0 करके दैट यू शुड अटैच विथ योर 9C. प्रेस रिलीज अलाउ करता है, सो दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड. यहां पर डिफरेंस डालो ही मत, भरो ही मत, और 9C में अटैच कर दो इसका करेक्शन करके. परफेक्ट है सर. प्लस एक वो मिसकंसेप्शन भी दूर करिए, 8C में नेगेटिव फिगर ले रहा है तो लोग उसमें नेगेटिव फिगर डाल के डिफरेंस को 0 कर दे रहे हैं. नहीं वो तो see I have also come across lot of cases for what do you say 17-18 जहां पे मेरे पास रिव्यू के लिए आया था दूसरे केसेस. you would believe अभिषेक जी किस टाइप के हमें एरर्स मिल रहे हैं. people have made an effort that there should not be any difference in 8D. so what they have done, let us say their actual credit is 50 lakhs and in their 2A only 40 lakhs are coming. So 8A is coming as 40 lakh, but अगर हम टेबल 6 को ठीक से भर देंगे तो यहाँ 50 लाख आ जाएगा. So what they have done, यहाँ टेबल 6 में जाके 40 लाख कर दिया. Right. So that टेबल 8 में कोई डिफरेंस नहीं हो, and उसके कारण क्या हो रहा है, the claim availed figure
that you are disclosing yourself is wrong. You are saying I have claimed 40 lakhs. सर इसके नीचे में जाके वो ऑल एनी अदर आईटीसी वाला जो कॉलम है ना, हाँ सर, यहाँ वो उसमें डाल देते हैं। दैट इज व्हाट आई, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कम क्लेम किया, नहीं वो मेरे 10 लाख 3B यहाँ में डाल 50 देते लाख है, हैं। हाँ, पर मैं यहाँ डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि नहीं 40 लाख ही है। ऊपर 40 करके यहाँ नीचे में 10 डाल के 50 बराबर कर दिए। द एम इज वी नो द रिजल्ट, डिफरेंस जीरो होना चाहिए, बाकी फिगर जो जहां जहां भर सकते हैं भर के जीरो कर। तो दैट इज वाई सजेशन कि सर अपने को टेबल 8 की खातिरदारी इतनी नहीं करनी है जिसके कारण हम अपना टेबल 4 या टेबल 6 को खराब करो। वी शुड नॉट डू दैट। टेबल 8 को इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं, ये वो नेग्लेक्टेड टेबल है विच डिजर्व्स टोटल नेग्लेक्शन, इसको अपने को इग्नोर करना है। परफेक्ट है सर? हाँ, फॉर योर चेकिंग यू शुड ऑलवेज हैव अ लुक एट इट, बट इस पे इतना ध्यान नहीं देना है कि हम अपने बाकी कंप्लायंसेस को खराब करें। तो क्विकली मैं समराइज करता हूं अभिषेक जी। टैक्स पेएबल and my output tax liability in 1819 I will disclose as per my actual figure, not as per 3B. difference in 9 में हम लोग table 9 of GSTR 9 में रखेंगे। alternatively input tax credit we will file as per 3B, जितना 3B में लिया उसका ब्रेकअप हमें वहां डालना है, and that will be taken care in 9C. you agree with this Abhishek ji? perfect Abhishek ji. abhi these are few tables of 9 which were made optional for 1819. Now it is saying table 12 and 13 ITC claimed ITC adjustments done in next year is optional, but ये चीज ऐसी है जो हम अपने मन से छोड़ेंगे तो नहीं है, तो हमें बेनिफिट लेने का बात है, तो ये तो हम आगे चल के भरेंगे। 8A to 8D सरकार बोलता है ऑप्शनल, अपलोड दीज डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, सरकार बोलता है कर सकते हो। उसके बाद जो बाइफर्केशन ऑफ इनपुट टैक्स वी हैव टू फाइल, इनपुट कितना है, इनपुट सर्विसेज कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है, यू हैव दैन ऑप्शन टू फिल ऑल द क्रेडिट, इनपुट वाले सेक्शन में डाल दो। सरकार ने ये भी बिलीव आपको बेनिफिट्स दे दी है। द बेस्ट पार्ट इज टेबल 14 के बाद 15, 16, 17, 18 जितने भी टेबल्स है ना सारे ऑप्शनल है, तो अब भरना चाहो तो भरो, नहीं भरना चाहो तो मत भरो। देयर इज नो tax impact because of these things. Sir, perfect है sir? तो yes sir. 6A और 26C is optional. हाँ Department has already started departmental audit for the SSCs and they are asking for bifurcation. हाँ, see that is true. आपको ऑफिसर के तो सामने देना है, it is optional only for filling the form. It is not optional to produce before the officer. It is almost advisable कि जब हम वर्किंग कर ही रहे हैं, हाँ, it is a fact कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि पता होना चाहिए इसके ऊपर लिया है, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, तो उसका बाइफर्केशन हमको देना चाहिए। बिल्कुल, अभी बैठे हैं तो कर सकते हैं इस पे वर्किंग। टेबल 8 में भी now they have given the option to download the amount reflecting in 8A, which is quite helpful। और 8A और हमारे 2A के डिटेल्स में जो डिफरेंस है, that again gives you a pinch. I'll want you to reflect कि उसमें क्या होगा। 8A का जो 2A है उसमें 1 लाख रुपए दिखा रहा है, मैंने जो गवर्नमेंट के साइट से 2A डाउनलोड किया है। सर अब यही बात आ रही है कि हमने सरकार से ही 2 इंफॉर्मेशन ली, एक ही डिपार्टमेंट से ली वो दोनों इंफॉर्मेशन, और वो दोनों फिगर में अगर डिफरेंस है तो क्या होगा। सरकार बोला ये लो 2A, उसमें ये रहा ब्रेकअप, फिर ये लो समरी ऑफ 2A, उसमें एक अलग फिगर। तो सी आई सपोज ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी वी डू नॉट नो। जैसे आपने बोला फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर भी है पोर्टल, तो वो पोर्टल क्या करेगा नहीं जान सकते। कम बैक टू सी विच इज योर रियल सिचुएशन। वो 2A में एक जगह में दिखा रहा है और यहाँ का 8A में नहीं दिखा रहा, तो यू हैव दैट प्रिंट स्क्रीन ऑफ 2A ना, कल को 2A से गायब हो जाएगा, पोर्टल गायब कर देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो एक जीएसटी में सर अभिषेक जी बताइएगा अगर मैं गलत हूं, मैंने एक चीज सीखा है नया, प्रोबेबली आई वाज नॉट फॉलोइंग दिस अर्लियर। मोर देन अ जीएसटी ऑडिट आई फील दैट समटाइम्स आई एम एन CID officer. I am working on my client's financials at each stage of communication with the portal or department and rather clients also. मैं evidence collection करता हूं कि भैया पता नहीं कल को जाके मुकर जाएगा तो क्या होगा।
कल को जाके बोलेगा तुम हमको दिखाओ प्रिंट स्क्रीन उस दिन का। स्क्रीनशॉट कभी नहीं लिया था हाँ सर, लाइफ में, इतना स्क्रीनशॉट कभी लाइफ में इतना स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया था। तो अभी ये एविडेंस कलेक्शन सर बहुत जरूरी है। मान लो, आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से कि आप किसी दिन एक दिन बैठ के रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा, आपको उस दिन फॉर एग्जांपल 10 रिटर्न्स फाइल करनी है, बीट योर 3B, बीट योर R1 और 99C। आपके पोर्टल में काम नहीं कर रहा, पोर्टल में जाम है या व्हाटएवर बी द रीजन। आपने ऑफिस में बैठे, आपका टीम मेंबर आके बोला सर पोर्टल पूरा जाम है, वो 1.5 लाख आदमी भर गया, अब आगे आप घुस नहीं सकते हैं। या आजकल तो एरर भी बहुत अच्छा से दिखाता है, मतलब कोई उसका वो नहीं होता है कि क्यों एरर आया, देयर सीम्स टू बी सम एरर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो बस अब आपने क्या किया, बोला हाँ यार ये तो ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, एक काम करो 15-20 मिनट बाद फिर ट्राई करना। आपने फिर ट्राई किया, फिर प्रॉब्लम आया, आप बोले एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो और आज छोड़ दो काम, अब हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, कल फाइल करेंगे, लेट फी लगेगा। आपने कल किया, आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा सर, बट आपने वो स्क्रीनशॉट उस पर्टिकुलर एसएससी का लेके रखा, बाकी 9 एसएससी का वो स्क्रीनशॉट नहीं लेके रखा। तो आपको वो बाकी 9 एसएससी का भी वो स्क्रीनशॉट लेके रखना है कि मैंने उसके लिए भी वो ट्राई किया और उसमें भी मुझे ये दिख रहा था। आप उस समय जाके सरकार को बोलोगे देखो ये दूसरे एसएससी का ब्लॉकेज दिख रहा है, तो इस एसएससी का भी मेरा प्रॉब्लम आ रहा था, सरकार नहीं मानेगा उस बात को। आपको उस एसएससी के लिए प्रिंट स्क्रीन रखना है। तो एक एडिशनल काम है सर कि काम नहीं हो रहा है पोर्टल पे, वो काम भी सबका एक लॉगिन करके सबका प्रिंट स्क्रीन चाहिए मेरे को। एरर जो आ रहा है सबका प्रिंट स्क्रीन लेना होगा। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूं, आप लोग को हो सकता है लगेगा बट कि गगन ये सब काम क्यों करने बोल रहे हो, बट गोइंग फॉरवर्ड दीज थिंग्स विल बी रेलेवेंट। वी हैव फेस्ड अ सिचुएशन जहां पे क्लाइंट बोला क्या प्रूफ है आपका कि आपका उस दिन ये प्रॉब्लम आ रहा था। हम बोले सर देखिए ये वाला, मैं बोले इसमें तो दूसरा क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, आपका क्लाइंट में कहां प्रॉब्लम है। अभिषेक जी आपका क्या व्यू है, ये मेहनत करना चाहिए हमें हर क्लाइंट्स का स्क्रीनशॉट जहां जहां पे नहीं हो रहा है कि एक लेने से चलेगा? सर अभी हमको जीएसटी कंसल्टेंट से ज्यादा आईटी इंजीनियर बनने की दरकार है। आई थिंक ऑल आवर ऑफिसेस शुड हैव आईटी कंसल्टेंट जो कि कंप्यूटर को समझे हमसे ज्यादा। दिस स्क्रीनशॉट इज अ फैक्ट। नहीं, वी रिसेंटली फेस्ड अ इशू, रिफंड फाइल नहीं हो रहा था, यू रिमेंबर अभी रिसेंटली जुलाई का पोर्टल ने गायब कर दिया, एज यू सेड जुलाई 17 का टैब पोर्टल से गायब हो गया। राइट, दे वर नॉट अलाउइंग अस टू फाइल रिफंड क्लेम। हम टाइम बार्ड हो रहे थे, वी वेंट फॉर अ रेट पिटिशन, हाई कोर्ट में रेट पिटिशन फाइल करने जा रहा था, ऑफिस से एक जन ने बताया अरे जुलाई का वापस आ गया। वी केम बैक फ्रॉम द हाई कोर्ट आधे रास्ते से कि नहीं चलो अब हमारा काम हो गया। सो ऑफ कोर्स दिस इज द एसेंस ऑफ द लॉ नाउ। परफेक्ट, ओके। ये याद रहे हम जीएसटीआर 9C में जो चीजों को ऑप्शनल बनाया गया है, टेबल नंबर 5 जहां पे यू डू योर टर्नओवर रिकंसिलिएशन, वहां पे अलग अलग हेड्स में आप डालते हो कि इस हेड्स में इतना, इस हेड का इतना, इस हेड का इतना। वो सारे रिकंसिलिएशंस को सरकार ने ऑप्शनल बोला एंड वी विल सी इन द फॉर्म, जस्ट लेट अस सी। ये आपका टर्नओवर रिकंसिलिएशन है वेयर यू स्टार्ट विथ योर बुक्स का टर्नओवर एंड यू डू ऑल दीज चेंजेस, B C D E F G H I J K L, सारे आप चेंजेस करते हो, N तक के चेंजेस। और उसके बाद O है एडजस्टमेंट्स इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव। नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड एक काम करो, आप इतना मेहनत मत करो, ये सारे डिटेल्स आपको भरने नहीं है अंदर में जाके, आप सारा फिगर को यहां पे लिख दो। बेसिकली बुक्स का टर्नओवर लिखो, यहां पे आओ, जीएसटी का टर्नओवर अपने आप पुल करेगा, जो डिफरेंस आ रहा है वो ओ में लिख दो, आगे बढ़ जाओ, आपका टर्नओवर एंड रिकंसाइल कुछ भी नहीं बचेगा। बट प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज एनी इंफॉर्मेशन, एनी फिगर दैट यू गिव ओवर हियर, सरकार पलट के उससे क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ना, भैया ये क्या किया ये रुपया का, बिकॉज यू आर सेइंग अदर्स। सो गवर्नमेंट विल ऑलवेज कम एंड आस्क, सो ऑफिसर आपको मांगेगा तब तो अपने को देना ही पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू check the relevant heads and go and fill for that particular head. Even let us say for example there are certain items, adjustments of unbilled revenue construction contracts में जो होती है, deemed supply की cases, credit notes, first year turnover तो अब है नहीं,
सप्लाई ऑफ एसईजेड जो आपके उसमें 3V में टर्नओवर में रिकॉर्ड नहीं होता है बट बुक्स में होता है, कंपोजिशन स्कीम का हुआ, वैल्यूएशन के कारण आपके कोई डिफरेंस आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंसेस है, लेट्स से एग्जांपल आपका ये सारा तो आपका यहाँ रिकॉर्ड हो गया, बट इसके अलावा भी देयर कैन बी लॉट ऑफ लॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन योर टर्नओवर एज पर बुक्स एंड टर्नओवर एज पर जीएसटी। वन सिंपल एग्जांपल, आपने एक फिक्स्ड एसेट बेचा, अब ओल्ड मशीनरी यू आर यूजिंग इट, यू हैव सोल्ड इट, सो यू हैव सोल्ड इट, the cost price, the WDV, books WDV of that particular machinery was let's say 10 lakhs and you sold at 12 lakhs. So how much will come in your income PL account credit side? 2 lakh rupees profit on sale of investment, other income 2 lakh rupees आएगा, but GST में तो वो 12 लाख का टर्नओवर होगा ना ट्रांजैक्शन वैल्यू, so your books is having 2 lakh but your GST is correctly having 12 lakh, तो this is a valid difference, आपने तो करेक्ट भी टैक्स पे किया 12 लाख पे, तो वो सारे एडजस्टमेंट्स आपको ये ओ में डालने हैं। इवन व्हेन यू हैव करेक्टली डिस्क्लोज्ड ऑल दी हेड्स बी से लेके एन तक, इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव सम फिगर व्हिच यू आर रिपोर्टिंग इन ओ, इट इज माय सजेशन आइदर टू मेंशन द रीजंस ऑफ व्हाटएवर यू हैव रिकॉर्डेड इन ओ, यहां पे लिखिए, या फिर एक अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट में इस 5O का ब्रेकअप बनाइए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और 9C के अटैचमेंट्स में अपलोड करिए कि ये डिफरेंसेस इस रीजन से आया है। अननेसेसरीली दिस विल शुड नॉट अट्रैक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और आज अगर आप इसकी बाइफर्केशन कर लोगे तो फ्यूचर में भी कर लोगे, आज नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर में भी नहीं ही होगा। दैट इज वन पॉइंट। बट द गवर्नमेंट हैज सेड 5B से 5N का सारा ऑप्शनल है, उसको सबको 5O में भर दो। माय सजेशन, डोंट डू लाइक दैट। 12B and C they have made optional, but we will not do that as an optional. We will go ahead and we should file all these figures because ये correct option हमें बताएगा। Table 14 it was an expense wise, जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न में टर्नओवर डालते हैं ना कि पावर एंड फ्यूल में कितना है, सैलरी का कितना है, डिप्रिसिएशन का कितना, सारे हेड वाइज एक्सपेंसेस डाल के उस पे कितना कितना आईटीसी लिया, ये रिकॉन्सिलिएशन अपने को देना पड़ता है। दिस इज ऑप्शनल। अगेन द सेम पॉइंट, या तो इस पर आप आज मेहनत करोगे, आज बनाओगे, या आज नहीं बनाओगे तो ऑफिसर अगर मांगेगा तो देना है, बट प्राइमा फेसी ऑफिसर इस ब्रेकअप पे वर्क नहीं करेगा आपका टिल द टाइम यू कैन गिव हिम योर आईटीसी लेजर HSN वाइज, जो आज के डेट में रिफंड लेने में भी जरूरी है। एंड इफ नॉट HSN वाइज, यू गिव हिम व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज, या क्या कैपिटल गुड्स है आपके आईटीसी में। ही विल वांट टू हैव अ लुक। सिर्फ पार्टी का नाम और एक वैल्यू, बिल वैल्यू देखने से ही विल नॉट एक्सेप्ट कि क्या क्रेडिट है। वो वहां पे HSN भी मांग सकता है आपसे, though it is an optional, so it is suggested to start making it। ये बात हमें 18-19 में पता चल गई थी, फिर भी let us ask this question to ourselves कि हमें expenses में भी HSN वाइज ब्रेकअप बनाना है। ये 17-18 और 18-19 के लिए ऑप्शनल सरकार ने किया और ये बात हमें 18-19 में पता चल गई थी। तो हम लोगों ने अपने कितने क्लाइंट्स का 19-20 में ये कंप्लायंस करेक्ट बनाया है? जब हमें 18-19 में पता चल गई थी कि 19-20 में एक्सटेंशन आया नहीं है, 19-20 का हमको देना पड़ेगा, और आज भी हमें पता है कि 20-21 जो फ्यूचर में अभी आधा 6 महीना तो बीत गया कोरोना के कारण, बट हमें देना तो पड़ेगा ना एक्सपेंस वाइज ब्रेकअप। हम में से कितने लोगों ने अपने कितने क्लाइंट्स का ये इनकॉर्पोरेशन कर दिया है? और नहीं, सर आपसे तो हम सीख रहे हैं सर, और हमने अगर नहीं किया है तो हमें कितना जल्दी ये काम कर देना चाहिए। अभिषेक जी, ये ब्रीफ रिकंसिलिएशंस व्हिच आर मेड ऑप्शनल, इस पे आपकी क्या राय है? Sir, I'll request you to show the form if you have. Now, talking about reconciliation in part table 5. हाँ सर, ये वाली सर ये ऑप्शनल बना दिया है। The thing is, इसमें ऐसा क्या है जो ऑप्शनल होना चाहिए? My first point is, ठीक है, it is optional. If I don't want, I will not fill in. But is it not wrong to not fill this? हमको ये पता है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर ये हमको नहीं पता है तो वी आर नॉट पेइंग द टैक्सेस करेक्टली। एज एन ऑडिटर, माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू सर्टिफाई द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच इज मैचिंग ऑफ द P&L अकाउंट विद GSTR 9। नाउ व्हाट आई डू इज, P&L अकाउंट में आई टेक आउट द क्रेडिट साइड, पुट इट इन वन प्लेस, आई टेक द टर्नओवर ऑफ GSTR 9, पुट इट इन द अदर प्लेस and give the balancing value in 5O.
I think it seems to be funny कि जिसका कोई ना हो उसका हो 5 हो डाल दो. So I don't agree कि ये optional होना चाहिए. I think we should at least know the items कि कहाँ क्या है, and if you go through the points A to M, there would be hardly any item जो यहाँ पे fit नहीं होगा. ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके fit हो ही जा रहा है. The complete law has been incorporated in this table. कोई किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में अगर कोई एक ऐसा आइटम है जो नहीं आ रहा है, एंड whichever we fill in 5O, I would request or I would recommend टेबल 6 में जाके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. Though there might not be any difference, यहाँ पे आप रीजन 1 में जाके लिख दीजिए कि the adjustment in 5O is due to this reasons and this perception. Basically what we have seen is हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं कि देयर मे बी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली वी क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हम अपने एक्सपेंस से सेट ऑफ कर देते हैं, बट फॉर जीएसटी पर्पसेस वी शुड चार्ज जीएसटी ऑन दैट सिंस इट माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीइंबर्समेंट फ्रॉम द जीएसटी लॉ पर्सपेक्टिव. वो फिगर अगर यहाँ पे आए तो वी कैन ऑफ कोर्स से कि ये एक्सपेंसेस में इंक्लूड, एक्सपेंसेस से नेट ऑफ हो रखा है, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द income. Such scenarios may be trade discounts which are not which are allowed in the GST regime, वो हम expense में डाल देते हैं. pre agreed discounts हुआ जो यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा है, हालांकि सेक्शन 15 में भी कवर हो जाएगा, बट स्टिल ऐसे जैसा कोई आइटम है जो यहाँ पे आ रहा है उसके बारे में भी अगर हमको डिटेल देना है, आई थिंक वी शुड क्लियरली एक्सप्लेन इट इन टेबल 6. परफेक्ट सर. यहाँ पर एक क्वेश्चन है खाली सर, इफ माय unreconciled turnover is 0 rupees and if I fill any figures or any text in reason 1, JSON error आ जाएगा. तो आप एक पैसे का गड़बड़ी कर दो ना सर. JSON error हमने करके देखा था. आई थिंक फर्स्ट फेज में आ रहा था, बट 18-19 में आई गेस नहीं आ रहा है. ओके मतलब वी हैव इवन मेंशन्ड इन सम केसेस व्हेन देयर आर नो फिगर्स. तो आई सपोज, आई एम नॉट वेरी श्योर, I don't take any guarantee of any form in GST कि आज हो सकता है आप बोल रहे आ रहा है तो आ रहा होगा JSON error, but so far as I remember नहीं आ रहा था. तो अगर JSON error आता है सर तो we can create a difference of 0.1 पैसा and then we can go ahead and write all these information. Perfect. Otherwise आप सर you are going by your line, observation में डालो, certification में जहाँ पे या attachment में डाल दो ना. We can prepare a PDF, get it signed by the management and put it in the updates. Absolutely. Okay sir. And sir one more thing, अगर हम टर्नओवर GSTR 9 में as per 3B दिखाते हैं और पिछले साल का एडजस्टमेंट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो मेरा 6 में भी यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा, 7 में भी डिफरेंस आएगा और 9 में भी डिफरेंस आएगा. तीन जगह डिफरेंस आ जाएगा. तो तीनों जगह को एक्सप्लेन करने से बेटर है वहीं पे उसे मार दो. सर अब 9 में ही कर देंगे. Perfect sir. Okay sir, this is one column, rather table I would say, table 9 of 9C. GSTR 9 में भी 9 पेमेंट को लेके था, यहाँ भी पेमेंट को लेके है. यहाँ से टैक्स पेबल अपने को रेट वाइज देना है. एक छोटी सी अपडेट है, अगेन ये टेक्निकल इश्यूज है. लेट अस से यू फिल अ फिगर ओवर हियर, taxable value at 5%, and then you give the figures of central tax, state tax, integrated tax and cess. So if this taxable value into this percentage up to 2 decimal points, if that value and sum total of these tax that you have put in over here, वो अगर मैच नहीं कर रहा है up till 2 decimal places, आपका JSON में एरर आएगा. करंट ईयर में भी ये एरर आ रहा है. So you have to make sure that the tax breakup and the 5% or the 12% or 18% of the taxable value that you are disclosing has to match up to 2 decimal places. Okay. सर अब मुझे ये बताइए ITC recon वाली जो पॉइंट है. See what it says. It starts with ITC availed as per annual financial statement. And sir, I believe that पूरे 9(9)C का जितना टाइम आपको लगेगा एक क्लाइंट का काम करने में, this 12A का फिगर
को सर्टिफाई करने के लिए, दिस फिगर विल बी पुट, लेट्स से इट इज गिवन बाय द मैनेजमेंट, बट वी हैव टू सर्टिफाई वेदर दिस फिगर इज करेक्ट और नॉट. सो ये जो 12A में हम फिगर डालेंगे ना, व्हाट इज दैट फिगर? ITC अवेल्ड एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये फिगर को सर्टिफाई करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मेरे पूरे ऑडिट टेन्योर का, ऑडिट प्लान का 30 to 40% फिगर टाइम सिर्फ ये एक फिगर के लिए लग जाता है. इसको फाइंड आउट कैसे करना है? क्योंकि जो हमारा पहला फिगर था ना सर, ये ध्यान दीजिए 5A फर्स्ट फिगर, ये फिगर बहुत सिंपल था. P&L अकाउंट उठाएंगे, ऑडिटेड P&L अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को टोटल करेंगे, अदर इनकम को टोटल करेंगे, जो फिगर आया सीधा यहां बैठा देना है. फर्स्ट ईयर आर्टिकल, इनफैक्ट फर्स्ट मंथ आर्टिकल को भी एक बार समझाएंगे तो वो 100% करेक्ट करेगा 5A वाला फिगर. बट सर 12A का जो फिगर है ना, ITC एज पर बुक्स, ये कहीं नहीं मिलेगा उसको ऑडिटेड अकाउंट्स में से, बिकॉज द ऑडिटेड अकाउंट्स में सामने सामने नहीं दिखेगा. यू हैव टू डिग इनटू, because this is not a balance at the end of the year, right? This is something जो हर महीना वो लिया होगा, फिर उसका क्रेडिट लिया होगा, तो लेजर लेना, रिवर्सल करना, क्लेम करना, यूटिलाइज करना सब हो गया होगा. आपको एक एक करके इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर्स में डिग इन करना है. My suggested course of audit for this 12A is, first of all, deduce the ledgers used by the client for their GST calculations. There may be a situation जहां पे क्लाइंट 3 लेजर बनाता है, CGST, SGST, IGST. आउटपुट टैक्स होता है तो CGST को क्रेडिट करता है, इनपुट टैक्स होता है तो CGST को डेबिट करता है. मंथ के एंड में देखता है कि कितना आउटपुट कितना इनपुट. इफ इनपुट इज मोर, आउटपुट इज लेस, वो टैक्स जमा नहीं देता है. इफ इनपुट इज लेस, आउटपुट इज मोर CGST में, तो डिफरेंस का वो कैश जमा कर देता है, और कैश भी जो जमा करता है तो CGST को डेबिट करता है, CGST डेबिट टू बैंक. तो उस केस में क्या है, इनपुट आउटपुट एवरीथिंग इन कमिंग इन वन लेजर CGST, एंड फ्रॉम दैट वन लेजर वी हैव टू फाइंड आउट कि भैया इसका क्रेडिट अवेल कितना किया, अवेल्ड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इट इज वेरी इजी, राइट गगन? क्रेडिट अवेल किया होगा तो डेबिट किया होगा, और आउटपुट टैक्स दिखाया होगा तो वो क्रेडिट किया होगा. तो हमको तो अवेल चाहिए, डेबिट टोटल निकाल दो, हो गया काम. नहीं भैया, इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज टैक्स पेमेंट्स भी डेबिट होगा, आउटपुट टैक्स रिवर्सल्स भी डेबिट होगा, और इनपुट टैक्स रिवर्सल्स क्रेडिट होगा. हमको वो भी ध्यान देना है. स्टिल इट इज इजी. आपको एक CGST का लेजर में ये सारा एडजस्टमेंट्स करके CGST निकालना है, SGST निकालना है और IGST निकालना है, काम हो गया. However, second type of accounting which can be done by the account team members, एक CGST आउटपुट का अकाउंट, एक CGST इनपुट, SGST आउटपुट, SGST इनपुट, IGST आउटपुट, IGST इनपुट. ये फिर भी बेटर है. इसमें आपको इनपुट वाला लेजर को खाली देखना है, और इनपुट वाले लेजर में डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट्स देख के आपको फाइंड आउट करना है. इफ एनी टैक्स पेमेंट्स आर देयर, उसको भी हटाना है. उससे ये फिगर निकला. थर्ड सिचुएशन, इनपुट CGST 5% का अलग लेजर, इनपुट CGST 12% का अलग लेजर, इनपुट CGST 18 का अलग, 28 का अलग, S का अलग, I का अलग, तो 12 लेजर्स हो गए. तो सबसे पहले तो आपको ये 12 लेजर्स के टोटल निकालने हैं, और देखना है कि RCM का लेजर भी इसी में है कि RCM का लेजर अलग से. अगर RCM का अलग से है तो RCM को भी लेना है, और फिर ये 12 लेजर्स का समरी करके आपको ये टोटल 12A के फिगर पे आना है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि क्या आपका क्लाइंट फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग, और उसके ऊपर में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू फिगर आउट, फाइंड आउट. मैक्सिमम टाइम में अगर ये फिगर ही गलत होता है तो योर ऑडिट सर्टिफिकेशन प्राइमरीली इज wrong. This is the most critical part which you are certifying, credit availed as per financial statements. What we have to keep in mind, a lot of time credit claim करने की conditions है कि bill मिल जाने चाहिए, goods भी मिल जाना चाहिए. A lot of time bill नहीं मिलता है तो पार्टी वो credit को financials में भी claim नहीं करता है और GST में भी claim नहीं करता है. बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे वो फाइनेंशियल्स में तो क्लेम कर लेता है पर जीएसटी में क्लेम नहीं करता है. तो वहां पे आपको ये एक डिफरेंस ध्यान में रखना है कि कितना क्लेम वहां पे किया और कितना क्लेम यहां पर किया. देयर आर ऑल्सो सिचुएशंस जहां पे फाइनेंशियल्स में भी क्लेम कर लेता है और जीएसटी में भी क्लेम कर लेता है. दैट अगेन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर ऑडिट कि हाँ आपने इस चीज को
180 दिन में पेमेंट नहीं होने से क्लाइंट की क्रेडिट को रिवर्स करनी पड़ती है। तो वो सारे क्रेडिट्स अवेल करके रिवर्सल किया, वो सारे फाइनेंशियल्स में आपको ध्यान देके यहाँ पे बैठाना है आपके ऑडिट में। 12B, ITC booked in earlier year but claimed in current. So booked is booked in financials, जो आपने पिछले साल में बुक किया 17-18 में, बट उसको क्लेम किया करंट ईयर में, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हमारे एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल 2 लाख रुपए यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 करोड़ यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 करोड़ 2 लाख मिलके आपका टोटल बना। एनुअल रिटर्न से फिगर पुल होगा, जो चूंकि टेबल 6 ऑफ एनुअल रिटर्न में हमने टोटल 2 करोड़ 2 लाख डाला था, तो यहाँ पर भी वो आ जाएगा। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट कुछ रहा नहीं, एंड यहाँ पे आपका ये बैलेंस मैच हो गया। कुछ क्रेडिट करंट ईयर में आपने लेना था 18-19 में, 18-19 की क्रेडिट्स हम कब तक ले सकते हैं अभिषेक जी? 18-19 की क्रेडिट्स हम कौन से रिटर्न, कौन से डेट तक के 3B में ले सकते हैं? 30th September as per me. हाँ सर, Not as डेट के 3B में नहीं, मैं बोल रहा हूँ it can be taken up to due date September 20s. सितंबर 19, September 18-19 ना? हाँ सॉरी, September 19. सितंबर 2019 की 3B की जो ड्यू डेट थी, जो प्राइमा फेसी 20 अक्टूबर थी, चेक कर लेंगे 2-4 दिन ऊपर नीचे बढ़ा था कि नहीं, 22 अक्टूबर हो गई थी शायद। 22 अक्टूबर, तो 22 अक्टूबर 2020 तक की जो हमारी क्रेडिट है, जो हमने क्रेडिट लेजर में ले लिया, सिर्फ वही आ सकती है यहाँ पे। 19। हाँ सॉरी सर, 19, ये कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा कि 2019 पार हो चुका 1 साल पहले, अभी तक का क्रेडिट खाली हम ले सकते थे। However, if the ITC is booked in 18-19 और लेट्स से करंट ईयर के ऑडिट कर रहे, तो अगर हमने ITC को फाइनेंशियल्स में ही अगले साल बुक किया और 3B में भी अगले साल लिया, तो वो ये C में भी नहीं आएगा और A में भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। If you have recorded in financials and not taken in 3B, तब वो यहाँ पर आके यहाँ माइनस होगा। बट अगर रिकंसिलिएशन हमेशा देखना, एक जगह लिया एक जगह नहीं लिया, तभी रिकंसिलिएशन बनेगा। जब दोनों ही जगह नहीं लिया, बुक्स में भी नहीं लिया और हमने 3B में भी नहीं लिया, तो वो ना इसका हिस्सा बनेगा ना इसका हिस्सा बनेगा। सर ठीक है सर, मार्च का क्रेडिट अप्रैल में बुक किया, मार्च 19 का क्रेडिट अप्रैल 19 में बुक्स में बुक किया, उसका क्रेडिट भी सितंबर के अंदर ही लेना है क्या? अच्छा, तो आपका क्वेश्चन आ रहा है सर कि हमारा क्रेडिट एलिजिबल मार्च में नहीं होके अप्रैल में हुआ, तो उसका क्रेडिट लेने का ड्यू डेट क्या है? राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि सर ड्यू डेट टू टेक क्रेडिट सेक्शन 16(4) में है, जहां तक है मुझे ध्यान। राइट 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 सर। तो वो कहता है कि आप किसी भी इनवॉइस का क्रेडिट उस इनवॉइस डेट के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक ले सकते हो। एग्जैक्टली। तो इवन वो क्रेडिट हमने फाइनेंशियल्स में अप्रैल में बुक किया, बट उसका इनवॉइस डेट तो मार्च का होगा। इवन इफ आई वाज एलिजिबल ओनली टू बुक इन अप्रैल, वो मार्च का इनवॉइस होगा, तो भी मुझे सितंबर के अंदर ही लेना होगा। मतलब 6 ही महीना मिलेगा, 1 साल 6 महीना नहीं मिलेगा सर। ये स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ द लॉ है और मैं कहीं हद तक इसको सही भी मानता हूं। सर आपका टेबल 12 पे या टेबल 12 एंड 13 पे आपकी कोई ओपिनियन? सर नो ओपिनियन एज सच, बट हाँ इसमें एक पॉइंट ये जरूर बोलना चाहूंगा कि टेबल 12 and 13 most probably is the most important part of ITC related function, as because 9 में हम कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहे, being contrary to what we the plea what we took for outward supplies में आपने बोला 9 में ही डिफरेंस दिखा के खत्म कर दे, डिफरेंस कहीं यहाँ पे कुछ करने का नहीं है। 9 में जो 17-18 का हम क्रेडिट लेंगे वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, 18-19 का भी क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होगा जो हम आगे ले रहे हैं, बट टेबल 8 में डिफरेंस आएगा जो कि हम हो सकता है ना भर रहे हो सकता है हमारी अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो हम एक्सेल फाइल में बना के पीडीएफ में अपलोड भी नहीं कर पाएंगे, तो हम बिना डिफरेंस के 9C फाइल कर देंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो हमको 13A और 13B में पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ भर देना चाहिए। आई बिलीव कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं और हम टेबल 12 भर रहे हैं तो एटलीस्ट हम ये तो बता ही रहे होंगे कि हमारा कहाँ पे कौन सा फिगर कहाँ से आया, हमारे पास ये वर्किंग होगी, एटलीस्ट उस वर्किंग को अपलोड कर दें अगर और कुछ ना हो तो। और अगर उसके ऑब्जर्वेशंस लिखना चाहें तो टेबल 13 में हम वी शुड मेंशन इट एज ऑब्जर्वेशंस। नाउ आई अगेन कम बैक टू वन पॉइंट, आपके लिए एक सवाल मेरे तरफ से, यू नो वी आर जस्ट डिस्कसिंग ताकि हम सबको
पता चल जाए. As an auditor, I don't think we are in any position to check whether section 16 का condition सब satisfy होता है या नहीं होता है. तो सर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक इवन गवर्नमेंट कैन असर्ट इन कि सामने वाला जो पार्टी है उसने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है. और हम यहाँ पे 2A कर रहे हैं कि GSTR 1 लगा दिया तो काम हो गया. आदमी 3A भी नहीं लगा रहा है, जो 3B लगा रहा है वो 3B और GSTR 1 में डिफरेंस ले आ रहा है. ये सब जो चक्कर है, वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई. तो सर इस पॉइंट पे आप बताइए कि मेरा रोल कितना लिमिटेड है और मुझे क्या करना चाहिए. क्या मुझे कोई पॉइंट बताना चाहिए, कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहिए, कोई डिस्क्लेमर देना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए इस पार्ट पे? सर यहाँ पर तो मैं एक बात बोलूंगा ना, आप एक जनरल डिस्क्लोजर दोगे, मेरा सजेशन है. कहां पर देंगे सर? सारे पार्ट खत्म होने के बाद ऑडिटर का हिस्सा यहीं पे आता है. अभी तक ऑडिटर का कोई रोल नहीं था. ऑडिटर को अपना रिकमेंडेशंस ऑन एडिशनल लायबिलिटी और एक वेरिफिकेशन देनी है. देखेंगे सर इस पे, ये यहाँ पर ना वो एक सर्टिफिकेशन पार्ट, हाँ सर्टिफिकेशन में ना यहाँ पर एक पॉइंट में नीचे सर, नीचे थोड़ा नीचे और, हाँ ये सर है नहीं यहाँ पे, जस्ट इसी के नीचे ये पॉइंट है ना, 4th पॉइंट, राइट. वहां पे वो ऑब्जर्वेशंस अपना लिखता है, क्वालिफिकेशंस अपना लिखता है. तो डोंट मार्क इट एज क्वालिफिकेशन, मार्क इट एन ऑब्जर्वेशन. और उस ऑब्जर्वेशन में अगर आपका कोई मन का दुख का बात है ना, या कोई राम कहानी लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मार्क इट एज एन ऑब्जर्वेशन एंड राइट वॉट एवर यू वांट. अपने को जितना कुछ लिखना है भर सकते हैं वहां पे. वहां पर एक पॉइंट हम लोग को लिखना चाहिए कि द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस गिवन बाय द प्रेस रिलीज डेटेड सच एंड सच, जून 2018 का जो था, उसके अकॉर्डिंग में अपने ऑडिट कर रहे हैं. एंड कुछ चीज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल सरकार के लिए नहीं है, वो आप कैसे असर्टन कर सकते हो कि मैंने वो किया. तो इसीलिए आपका एक डिस्क्लेमर आ गया एज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. ये मेरी सजेशन है. सर एक मैं पॉइंट यहाँ पर ऑडिटर जोन के लिए बोलना चाहूंगा. आप एक पार्ट देखोगे ना 9C में, जितने भी चीजों को हमने डील किया, राइट फ्रॉम योर टर्नओवर, टेबल 5 में टर्नओवर, तो वहां पे जो भी डिफरेंस आएगा तो उसका एक रीजन पूछेगा. फिर 7 का टर्नओवर, उसका रीजंस पूछ रहा है. फिर यहाँ पे 9 का टेबल में जो डिफरेंस आया उसका 10 में रीजंस पूछ रहा है. ये तीनों होने के बाद देखिए 11 क्या बोलता है, एडिशनल अमाउंट पेड ड्यू टू रीजंस स्पेसिफाइड इन 6, 8 and 10. 6, 8 and 10 वर रीजंस फॉर अनरिकंसाइल्ड अमाउंट. और यहां बोलता है कि इस रीजन से आपकी जो भी एडिशनल लाइबिलिटी है उसका यहां पर आप अमाउंट पेएबल बताओ. So if there is no amount payable because of that difference, you should not, you are not required to make anything. कोई additional tax pay कराएंगे तो वो यहाँ आता है 11 में. 12 का भी वही है. 13 में आपने ITC का डाला, 14 में भी नीचे यहाँ पे आपने 15 में अनरिकंसाइल्ड अमाउंट के डिफरेंसेस को डाला. उसके बाद देखिए 16 क्या बोलता है, टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन ITC ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड इन 13 and 15. दैट मींस इफ देयर इज अनरिकंसाइल्ड ITC because of which there is some tax payable, वो यहां डिस्क्लोज हो गया. आउटपुट के लिए 11 में हो गया, ITC के लिए 16 में हो गया, whatever is your turnover differentiation. अब इसके बाद जाके देखिए क्या बोलता है, ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन. तो अगर आपका ऊपर में नॉन रिकंसिलिएशन है जिसके कारण टैक्स लायबिलिटी बना, तो वहां पर आपने रीजंस नोट कर दिया, यहां पर क्वांटिफाई कर दिया. बट अगर ऊपर में देर इज नो अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस बिटवीन योर बुक्स एंड बिटवीन योर 3B GST, तो देर इज नो, maybe you have written some reasons but there is no tax liability because of it. तो यहां पर अपने को फिर कुछ क्वांटिफाई नहीं करना है. इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना है. हम लोगों को मन का जितना भी बात बोलना है, be it related to turnover, be it related to ITC, be it related to tax payments, we should definitely use the reasons column and also the observations column. उसमें आपको जितना भी, because it's your signature, your certification, आपको जितने भी observations है you should go ahead and mention. चाहे वो adjustment of taxes हो, adjustments of ITC हो, non disclosures of 2A हो. 18-19 में भी तो requirement नहीं था ना सर 2A के संग 36(4) was not effective. तो आप वहां का उसका एक डिस्क्लोजर दे सकते हो कि भैया जो भी क्रेडिट लिया, even though there is a difference in table 8 of GSTR 9, that is irrelevant, not as per the law.
तो सारे आपको ऑब्जर्वेशंस देने हैं बिफोर यू डू दैट सर्टिफिकेशन। अभिषेक जी, सर्टिफिकेशन पे आप बहुत अच्छे से कुछ समझाते हैं सर, यहाँ पे हमारी क्या जिम्मेदारी है एज एन ऑडिटर। दिस वेरिफिकेशन इज बाय द CA, so what is his declaration? This verification is by this first verification part is by the registered CA. CA, this is by registered person, नीचे वाला। हाँ, तो वो first part वाला is true and correct. This is what you wanted me to focus on. हाँ, सच और सही, ट्रू एंड करेक्ट। तो इसके बारे में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बट आई फील दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन सर्टिफाइंग ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट टू बी ट्रू एंड करेक्ट सिंस वो 3CD वाला पार्ट, 3CA 3CD इनकम टैक्स में। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा उतना हमको हॉन्ट करना चाहिए, so far as we are already doing income tax audit. But now the point is still क्यों इतना डर लग रहा है और क्या बात क्या है, कुछ खास बात है क्या? The point is true and correct to the extent of what? To be compliant of all GST laws, the rules, the circulars, the RODs, the now we have a new concept of press releases. उसके बाद एक ट्विटर ट्वीट आया है, उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी कॉमन पोर्टल, एडवांस रूलिंग्स। सर ये क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, उसके अंदर में कितना ट्रू है और कितना करेक्ट है, ये मेरे ख्याल से एज एन ऑडिटर व्हेन वी गिव आवर ओपिनियन, नॉट एज हमको बचपन से सिखाया वी आर नॉट ब्लड हाउंड्स, वी आर जस्ट वॉच डॉग्स। ये वॉच डॉग का काम तो नहीं लगता है सर मेरे को कि हम इसको ट्रू एंड करेक्ट बोल पाएंगे। नाउ माय पॉइंट कम्स कि ऑन वन साइड इट सेज आई solemnly affirm that information given here in above, ये information जो मैं दे रहा हूँ it is true and correct, तो मतलब ये information मैं दे रहा हूँ, मगर ये reconciliation statement शायद बनाएगा, ये बनाना चाहिए इसको क्या नाम है, क्लाइंट को प्रेस रिलीज जो बोलता है। Now the point is very different, एसएससी बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसके लिए बोले हमने एक अलग से रजिस्टर्ड पर्सन का वेरिफिकेशन डाल दिया। वो वेरिफिकेशन क्या बोलता है, वो वेरिफिकेशन बोलता है कि भैया इस पूरे कार्यक्रम में मेरा कोई हाथ नहीं है, जो किया मेरा सीए किया, मैं एज इट इज वो फाइल को उससे लेके आया और अपलोड कर दिया। I have no role whatsoever in this particular transaction of uploading the 9C. The preparation as prepared and duly signed by the auditor. ये फॉर्म में वेरिफिकेशन हमारे क्लाइंट से या ऑडिटी से ये लिया जाता है कि दिस पर्टिकुलर फॉर्म 9C is being prepared by the auditor. Now I feel afraid, अगर ये वेरिफिकेशन वो साइन करके देता है, इसका मतलब ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है मैं खुद बोल रहा हूं कि वो ट्रू एंड करेक्ट है, और उसके बाद वो बोलता है कि जो कर रहा है यही कर रहा है, और फिर मैं उसे साइन करके अपलोड कर देता हूं। नाउ टू माय रिलीफ आई फील वो 0.4 ऑफ सर्टिफिकेशन आता है, और मुझे याद आती है वो प्रेस रिलीज जो कहता है रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन सर्टिफाइंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी मच लिमिटेड, very much limited to just reconciliation of figures between GSTR 9 and audited financial statement, and he has no authority to go beyond the books of accounts. Perfect. So ये go beyond the books of accounts के ऊपर we have ample case studies, and I think we have discussed it a lot many times क्या क्या हो सकता है। I'll just request you अगर इसके ऊपर और एडिशन नहीं हो तो हम लोग 2-3 पॉइंट और इसके ऊपर भी डिस्कस करें कि क्या क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है या क्या क्या ऐसा केसेस है जो which is not allowed by the press release to go beyond the books of account, but we should also take care of those points. Go ahead Abhishek. Sir, first part let me question and you just give the answer. मेरी टर्नओवर एक्चुअली 1 करोड़ है, मेरे बैलेंस शीट में मैंने गलती से 90 लाख ही दिखाया, मेरे GSTR 9 में भी मैंने 90 लाख ही दिखाया,
So my books of accounts is limited to 90 lakhs. My GSTR 9 is limited to 90 lakhs. Everything has been done by 90 lakh rupees, but the actual turnover was 1 crore rupees. You might have, come across the same as because you have seen the e-waybill report or something like that. कुछ करके आपको पता चला कि यार ये तो 1 करोड़ का सेल किया है, मगर बाकी सब जगह 90 लाख है. सर आपको सर आजकल वो होता है ना 26 से सर्विस सेक्टर्स में आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से आता है कि 26 में आपका 1 करोड़ दिख रहा है, आपने 90 लाख पे कैसे बैलेंस शीट बनाया? something of that sort. अगर ऐसा है तो what is my responsibility? Should I show it or not? Or should I write it or not? देखिए सर, यहाँ पर ना अभिषेक जी, मैं अपना जो बात करेंगे, जो आपने प्रेस रिलीज की बात करी है, सो आई हैव टू रीड द फॉर्म, whatever is written in the form, whatever is the responsibility cast by the form, and whatever is the guidelines given by the press release. मैं इन दो को पढ़ता हूं. आई बिलीव, मेरे पॉइंट पे, कि जब सरकार ने ऑडिट करने की कैपेसिटी हम चार्टेड अकाउंटेंट्स को दी है और एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स को दी है, वो ये नहीं बोलता कि तुमको अगर 2+2 4 मालूम है, तुम बीकॉम पास है तो तुम भी ऑडिट कर सकते हो. उसने एक जिम्मेदारी दी है सरकार ने कि हम आपके सिग्नेचर को वैल्यू करेंगे. तो अगर हम स्पिरिट पे इसको पढ़ते हैं फॉर्म को, तो इट बिकम्स माय बेसिक लायबिलिटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी to bring out those facts which are with your basic scope of work that can be easily identified. That is your role. However, इसमें मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूं कि मान लो मेरा एसएससी प्रोडक्ट ए बेचता है, बुक्स 3B 26AS या जो भी चीज है सारे मैच कर रहा है एकदम, 10 करोड़ का टर्नओवर दिखाया और उस पर टैक्स रेट 18% चार्ज भी किया, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आइटम 28% का है, 18 का नहीं है. नाउ दिस इज समथिंग मूविंग बियॉन्ड बुक्स वेयर आई एम जंपिंग टू कंक्लूड द टेक्निकल नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट. HSN क्लासिफिकेशन पे हम अपनी ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं कि ये 18 नहीं 28 होना चाहिए, और फिर मैं उसको बोल रहा हूँ भैया तू तो गलत टैक्स दे रहा है, तेरे को तो मैं नोट बना दूंगा 28 देना है. आई बिलीव वी शुड बी फॉलोइंग प्रेस रिलीज टू look into certain smaller aspects, to cover those smaller aspects, and it should not be used as a blanket to cover all the misdeeds of the SSEs, because if we do that, the whole purpose of audit is failing. I know I have given a diplomatic answer, but that is what we have to follow, simply because government will come and say that this is a press release and this is a form. आपने फॉर्म में सर्टिफाई किया ट्रू एंड करेक्ट, आपको बुक्स और प्रेस रिलीज का गाइडेंस है कि डोंट गो बियॉन्ड बुक्स, तो क्या आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं दोगे यहाँ पे? सो दैट इज माय पॉइंट. राइट सर, अग्रीड. मोर सो मतलब यू केम टू अ कंक्लूजन कि क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट पे भले ही टिप्पणी ना करें, द टर्नओवर एस्पेक्ट पे हम जरूर बोलना चाहिए. रिकंसिलिएशन एस्पेक्ट जो ऑफिसर भी प्राइम ऑफिस निकालेगा, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ कि ये होगा. More additional point, the statutory auditor or the tax auditor also has a big responsibility on that part if you go and qualify your report on the basis of the turnover. So sir, उस चीज के लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा ना, if same statutory auditor is there and a different statutory auditor is there, if you carefully read the certification, books of accounts को मुझे clearly says कि books के संग सही है कि नहीं. Going beyond books की liability stat auditor की है, it is not the requirement of the GST auditor. It clearly says, यहाँ पे बहुत clearly यहाँ पे दिया हुआ है. ये देखिए सर, I certify that PL account are in agreement with the books of accounts. ये आपको सर्टिफिकेशन देना है जहां पे सेम ऑडिटर हो आप. तो अगर सेम ऑडिटर हो तो आप जीएसटी में तो बोल दोगे भैया मेरे को तो चेक नहीं करना था, तो बोलेगा अच्छा भाई तुम तो स्टैट ऑडिटर था, तो आपका स्टैट ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा. तो वहां पर आपको क्या करना है, अभिषेक जी स्टैट ऑडिटर तो गगन बन गया जीएसटी ऑडिटर. आपको एट द एंड मेरे को तो आपको बचा के चलना है ना सर. और आपको मेरे को बचा के चलना है. बिल्कुल सर. इन ऑल टुगेदर मैं ये बोलना चाहूंगा, दिस सर्टिफिकेशन हैज गिवन अस अ बिग अपॉर्चुनिटी. जो मन में लिख दो. राइट सर. ये सर्टिफिकेशन में आप अपना पूरा मन का सारा बात बता सकते हो. बस आई रेकमेंड कि वो प्रेस रिलीज का जो पॉइंट है
उसको कॉपी करके, आई थिंक क्लॉज एच था सर, एच, क्लॉज एच, जुलाई 2018 में जो आया था प्रेस रिलीज, 4 जुलाई 2018। नहीं सर, जुलाई में था, फर्स्ट वाले में नहीं था वो, फर्स्ट वाला जो आया था ना जून में, उसमें नहीं था, जुलाई वाले में था। 3 जुलाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, 3 जुलाई, 3 जुलाई क्लॉज एच प्रेस रिलीज का कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, कि आप ही ने तो बोला कि भैया दिमाग मत लगा, तो मैंने नहीं लगाया, मतलब हालांकि मैं लगा रहा हूँ, बट अगर maybe we can use that word, we have done in our audit in accordance with the guidelines of press release clause H which says this, कि हमने उसको फॉलो किया है। राइट सर, राइट सर, हमने दिमाग नहीं लगाया से बेटर है बोलेंगे हमने उसको फॉलो किया है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट वी हैव डन एज गाइडेड, as ऑर्डर्ड टू अस रादर। सर क्विकली ये होने के बाद ना, मैं आपसे अगर कुछ रीसेंट अपडेट्स की बात करूं सर, तो रीसेंट अपडेट्स में 2-3 क्विक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सरकार आपको बोल रहा है कि तुम अगर चोर हो तो हम तुम्हारे लिए स्कीम निकालते रहेंगे, और तुम अगर चोर नहीं हो, अच्छे आदमी हो, गलती हो गई थी, तुम ठीक कर लिए अपने आप को, तो हम तुमको पेनलाइज करेंगे। तो तुम अच्छा आदमी मत बनो, तुम चोर बने हो, गलती हो गई है तो चोर बन के बैठो। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आप खाली एक बार जाके ये ना असेस करो, जीएसटी में कितनी बार ऐसी एक्सटेंशंस आई है कि इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न्स फॉर दिस पीरियड, अभी फाइल कर दो तो लेट फी नहीं लगेगा या एकदम नॉमिनल लगेगा। और जिसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, भैया तुमने तो दे दिया पैसा, अब हम तुमको तो वापस देंगे नहीं। तो ये अभी वापस से सरकार ने लाया जीएसटीआर 4 कंपोजिशन डीलर्स और जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न वालों के लिए। उनके लिए ड्यू डेट दिया है 22 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में लगा दो पुराने रिटर्न्स, तो लेट फी नहीं लगेगा या 500 रुपए करके रिड्यूस में लगेगा। सिमिलर एक प्रॉब्लम किया है सर इंटरेस्ट के ऊपर में, ग्रॉस की नेट। मतलब सरकार क्लासिक एग्जांपल दिया इस केस में कि भैया तुम मुझे अगले इलेक्शंस में वोट मत देना, मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं। कानून आपको कुछ बोल रहा है, कानून मंत्री आपको कुछ बोल रहा है, कानून मंत्री का वीडियो घूम रहा है मार्केट में, जीएसटी काउंसिल आपको कुछ बोल रहा है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स बोलता है हम तो मानेंगे नहीं उस बात को। आपको काउंसिल ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला इंटरेस्ट विल बी ऑन नेट लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट नोटिफिकेशन आ गया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उसके बाद इन लोग नोटिफिकेशन को चेंज नहीं करेंगे, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरनल डायरेक्शंस निकाल के, ऑर्डर निकाल के सारे प्रिंसिपल कमिश्नर सबको बोल रहे भैया पुराना केसेस में ना तुम नेट लेगा जो वो रेट्रोस्पेक्टिव करना, प्रोस्पेक्टिव मत करना। बट एट द एंड क्या हो रहा है सर, उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोलने में क्या जा रहा है? नोटिफिकेशन अभी भी बोलता है प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव किया नहीं। बट आपके पास दूसरे कानून है तो जाके लड़ो, ऑफिसर आपको ये बोलेगा आप ये बोलो, करते रहो। उसमें भी एक और क्या बोलता है कि जितने भी केसेस अभी है आप उसको कॉल बुक में डाल के रखो। अगर आपका कोई भी शोकॉज आपने इंटरेस्ट का किया उसको पेंडिंग रखो, हो सकता है सरकार फ्यूचर में और कुछ सोचेगा चेंज करने के लिए जो भी, तो उसको पेंडिंग रखो। और आपका बात से डर गया सर, वोट दे दीजिएगा, चेंज होने वाला है। नहीं सर, चेंज होने वाला है, बट उसके बाद में क्या बोला, जिन लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया या जिन लोगों ने अपील में चला गया, अपील को तो छोड़ो, जिन लोगों ने पे कर दिया वो केसेस छोड़ दो, उसको भूल जाओ। दे दिया तो एक बार दान दे दिया सरकार को तो गया सर, जो दे दिया, जो डर गया वो दे दिया, जो डर गया वो दे दिया। तो आप डरो नहीं, एक ये चीज देखना है। इनवॉइसिंग सर 500 करोड़ के ऊपर का जो रिक्वायरमेंट आया है, इसमें एक चीज जो मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है ये डेट आपका 1 अक्टूबर से भी एक्सटेंड हो सकता है नहीं भी हो, यू नेवर नो, सरकार तो कब क्या करता है। दिस एक्सटेंशन केम इन मार्च ओनली, जब उन लोगों को मालूम नहीं था कि कोरोना का ये हाल होगा। तो प्रोबेबली यू कैन एक्सपेक्ट 30 सितंबर को बोलेगा कि इनवॉइसिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो इनवॉइसिंग इज नथिंग बट रिपोर्टिंग योर सेल्स ऑन अ डेली बेसिस। सरकार को रियल टाइम बेसिस पे आप बता रहे हो। क्वेश्चन आता है सर, इनवॉइस में हमने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आपकी भी सुन सकता हूं कि नहीं सुन सकता हूं? अब सुन सकते हो, 24 घंटे में इनवॉइस को कैंसिल कर दो, चेंजेस कर दो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको फिर R1 में करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन बनाना पड़ेगा, वो एक अलग झमेला है। इनवॉइसिंग के बाद हम 2B जो फॉर्म है, अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से बताया, क्विकली उस पे एक पॉइंट। डाउट है सर, एप्लीकेशन हाँ सर, बताइए ना सर, 500 करोड़ कब का देखना है सर? सरकार जो है, मुझे लगता है कि कभी कभी दे आर वर्किंग फॉर दैट सॉफ्टवेयर कंपनीज। क्यों बनाता है कानून, क्यों लाता है,
नो गाइडेंस, बोल दिया आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ 500 करोड़ देखनी है आपका। हर साल आप बैठो, पिछले साल 500 करोड़ था तो इस साल शुरू से मैं बनाऊंगा, इस साल 500 करोड़ नहीं हुआ तो क्या मैं साल के बीच में छोड़ दूं, अगले बार से छोड़ूं? माय सजेशन, पिछले साल अगर 500 करोड़ के ऊपर है तो आप अभी बनाओ, पिछले साल 500 करोड़ के ऊपर नहीं है बट करंट ईयर में तो नारी 500 करोड़ के ऊपर होगा अगर पिछले साल नहीं है तो, अनलेस यू आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक Zoom। पर 17-18 में अगर 500 करोड़ के ऊपर था, कंपनी उसके बाद से काम बंद कर रखी है। हाँ 18-19 में टर्नओवर इज नियरली लैक्स, हाँ, वो भी इंक्लूड कर दिया सर इनवॉइसिंग करो बोल के। वो तो क्या कह रहा हूँ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। सर। अब आप बताओ, मेरा एक क्लाइंट है, उसका 700 करोड़ का टर्नओवर है, 500 से ज्यादा, एंटायर एग्जाम सप्लाई, उसके लिए इनवॉइसिंग का रिक्वायरमेंट है क्या मैंडेटरी? B2B होगा तो है। हाँ B2B है, सारा B2B है, डन है, टैक्स तो है ही नहीं। हाँ क्या फर्क पड़ता है सर? तो सर समझ रहे हैं किस तरह का इन लोग कंप्लायंस बर्डन बढ़ा रहे हैं बिना मतलब का। मेरा क्या टैक्स एवेजन होगा इस केस में? रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए था। नहीं वो तो चलिए सर, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कहीं पे आपको काम करना है, गवर्नमेंट के संग एनलिस्टमेंट चाहिए। I come across a lot many power plants, solar power plants, जिनकी टर्नओवर इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ होती है, बट ऑल एग्जेम्प्ट। अगर वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो उसके यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट देने के लिए कोई कंपनी को अगर इंडल्ज करते हैं, एएमसी के लिए भी, तो जीएसटी नंबर नहीं है इतनी बड़ी कंपनी का, तो उसको गलत निगाह से दिखती है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद सोशल स्टेटस, उसके एग्जैक्टली उसके बाद उसको कंप्लायंस लेना चालू, और उसके बाद कुछ नहीं करके देयर इज नो टैक्स इवेजन नथिंग, बट स्टिल, बट ठीक है, ई इनवॉइसिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट रिलीफ इफ आवर एग्जिस्टिंग ईआरपीस एंड अकाउंटिंग पैकेजेस इंप्लीमेंट द सेम। सर बहुत सिंपल है इसका एपीआई एक्सेस। कोई भी अगेन सीए का डोमेन नहीं है, बट अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग, वो इसका एपीआई एक्सेस सरकार के पोर्टल में बहुत इजीली अवेलेबल भी है, और आप उसका इनवॉइसिंग पोर्टल से एपीआई एक्सेस अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। टैली का अपडेट है कि अभी तक टैली ने ये एड ऑन अभी तक रिलीज नहीं किया है। आई विल नॉट से एड ऑन, इसका अपडेट अभी तक रिलीज नहीं किया है, तो प्रोबेबली टैली भी 30 सितंबर तक कर देगा। और अगर टैली नहीं करता है तो चांसेस ऐसा है, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्पेक्यूलेशन, कि डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि टैली को कहीं ना कहीं मालूम है कि ये वाला चीज कितना जल्दी आने वाला है कि नहीं, उसकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। एक और चीज है सर, 2B के ऊपर मैं क्विकली मैं बोलता हूं बिफोर वी ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन। देयर वर सम क्वेश्चंस आई सपोज। सर 2B जो है ना हमारा 2B जीएसटीआर 2B, वहां पे एक पॉइंट है कि वो आपको ये बताता रहेगा कि आपको कौन सी क्रेडिट लेनी है, कौन सी क्रेडिट नहीं लेनी है। तो अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से एक पॉइंट रेज किया कि अगर आप कोई क्रेडिट आपके 2A में दिख रहा है, 2A एंड 2B सेम, 2A डायनामिक है, 2B फ्रीज हो जाता है। 2B कब मिलेगा आपको? मान लो आपने करंट मंथ अगस्त का 2A आप डेली बेसिस पे देख सकते हो, जब जब पार्टी अपडेट करेगा उसमें आपको दिखता भी जाएगा। R1 फाइल करने का ड्यू डेट है अगस्त के लिए 11 सितंबर, तो 11 सितंबर तक आपका 2A चेंज होता जाएगा। बट अगर 12 सितंबर को भी किसी ने R1 फाइल किया तो आपका 2A चेंज होता जाएगा, 2B फ्रीज हो जाएगा। 2B 11 सितंबर लास्ट खत्म, 12 सितंबर को आपको आपका 2B मिल गया, स्टैटिक है, जितना एंट्रीज अभी तक आया वो आएगा। उसमें आपको बताएगा कि कौन कौन सा क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसमें से सबसे पहले बताएगा भैया ये क्रेडिट आपका 17-18 का है, उसका क्रेडिट का टाइम पीरियड पार हो गया, या 18-19 का है वो भी पार हो गया, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा कुछ एक और क्रेडिट्स है, जैसे मान लो ना आप कभी दिल्ली गए, दिल्ली में होटल में रुके, होटल वाले ने सीजीएसटी एसजीएसटी दिल्ली में चार्ज किया, आपने अपना जीएसटी नंबर दे दिया, उसने डाल भी दिया, आपके 2A में भी दिख रहा है, आपके 2A में एक होटल का क्रेडिट दिख रहा है, दिल्ली के C और S का क्रेडिट, और आप वो ले भी लेते हो। वो क्लियरली वहां पर आपको बता देगा कि आपका सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है और आप दूसरे स्टेट में हो, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। आईजीएसटी होने से मिलता ना, आपका तो बंगाल का रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारी चीजों को वो बता देगा 2A कि आपको कौन सा क्रेडिट मिलेगा, कौन सा क्रेडिट नहीं मिलेगा। एडिशनली इसमें आपको इंपोर्ट्स के बारे में भी मिलेगा, आइसगेट से डेटा आता हुआ, तो ये एक है। और एक छोटी सी अपडेट है सर, आप लोग ना कहीं सोशल मीडिया पर और ये सब एक ट्रोल मीम हम लोग जिसको बोलते हैं ना, वो देखे होंगे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये बहुत फास्ट ब्राउजर है, तो ये लोग जब सेकंड थर्ड सेंटेंस बोलते हैं तब जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर अपना फर्स्ट सेंटेंस बोलता है, वो इतना पीछे चलता है। तो उसी तरह से ना कहीं पोर्टल भी काम करता है। कुछ चेंजेस 1 साल 2 साल पहले कानून में आ गया था,
बट पोर्टल में वो चेंजेस धीरे धीरे आज इफेक्ट हो रहे हैं, वन ऑफ विच इज डीलिंकिंग ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स विद ओरिजिनल इनवॉइस। पहले का कानून था एक के बदले एक होना होगा, अभी कानून बदल चुका है और उसमें आप मल्टीपल ओरिजिनल इनवॉइस का एक सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट कर सकते हैं, बट पोर्टल ये अभी तक अलाउ नहीं कर रहा था। ऑफ लेट दे हैव चेंज्ड दिस, अब आपको ओरिजिनल लिंकिंग नहीं करनी है, अब ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। देयर हैव बीन केसेस अर्लियर जहां पे बिकॉज ऑफ दिस 1-to-1 कोरिलेशन देयर वर लॉट ऑफ बिग कंपनीज, व्हाइट गुड कंपनीज, दे वर नॉट इशूइंग अ टैक्स क्रेडिट नोट्स, बोलते हम ज्यादा टैक्स देंगे, तुमको भी वो जो करना है करो। नाउ these problems can be solved because of this call book late fees. That's all from my side, Abhishek. Abhishek, over to you if you have any other updates to be added. All updates done from your side. We have given our perspective of the updates also. सर अपडेट्स में तो सबसे बड़ा बात होता है अपडेट्स रिसेंट का क्या होता है जीएसटी में, व्हाट इज रिसेंट, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? आप जब रिसेंट अपडेट बोल रहे थे तो मैं देख रहा था व्हाट्सएप चेक करके कहीं नया कुछ आया तो नहीं। हो सकता है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। कई सारे सर हमारे सेमिनार्स में अभिषेक जी ऐसा हुआ है कि हम सेमिनार देके, आपके संग भी हुई है, हम लोग साथ में सेमिनार देके निकले, कानून बताया, ये कानून ना खत्म होते हो तक में जो सामने बैठा है वो खुद बोल दिया सर चेंज आ गया। We faced it together, I guess. Yes, yes, ACA में हमने एक बार फेस किया था सर। Thank you so much, sir. That is Thank you all. everyone. I think we are open to questions and answers. Yes, sir. So thank you, Gagan and Abhishek. You both have asked questions to each other and answered them well, so that the doubts could be cleared. Now there could still be many doubts, as GST has been throughout. So now this forum is open for the participants to ask their questions. So you may either put the question in the chat box, or you may take the leverage of unmuting yourself and raising the query. So as you deem suitable and fit for yourself, you may either raise the question in the chat box, or you can directly ask the question by unmuting yourself. Hello. Yes, sir. जानना था। हाँ पूछिए सर। जैसे अपने किसी क्लाइंट ने सप्लाई किया था IGST, लेकिन GSTR 3B में उन्होंने CGST और SGST शो कर दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। और GSTR 9 के समय उन्होंने उसको ठीक कर दिया है, क्योंकि टेबल 4 में अपने फिलअप को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, फिगर वगैरह को। ठीक है। 9C में कहीं पे कुछ आएगा क्या ऑडिट रिपोर्ट पे इस चीज को लेके? अभिषेक जी आपके राय? सर इसमें हम लोग दोनों अलग अलग बातें बोलेंगे आपको। पहले एक बात मैं बोलता हूँ, फिर बाकी बात गगन जी बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट इज, आपने टैक्स गलत पे कर दिया, आई की जगह जी सर, गलत हेड पे चला गया। तो सर जहां तक आपने कहा कि मैंने 9 में ठीक कर दिया, मुझे लगता नहीं कि सर वो ठीक हुआ। मुझे ये लगता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी सही बता दी। सी और एस मेरी लाइबिलिटी नहीं बल्कि आई लाइबिलिटी थी, मगर पेमेंट तो आपने सी और एस का कर रखा है। लॉ सेज कि सी और एस का रिफंड लो और आई को पे करो। नाउ गगन जी बोलेंगे रिफंड का तो प्रोविजन है नहीं, तो सर गगन जी आपके एडिशन। परफेक्ट है अभिषेक जी, ये मुझे लगता है ये आपकी और मेरी ब्यूटी है कि हम हर सिक्के की दोनों पहलू को बात करते हैं। जब तो डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, किस किस हद तक सोचेगा और क्या एलिगेशन लगाएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सर आप जो बता रहे हैं कि करेक्ट हेड्स में फिर से पे करो और रॉन्गली पेड टैक्स का रिफंड लो, ऐसा सेक्शन 77 बोलता है, जिसके तहत में आपने बहुत अच्छे से ये समझाया कि आपको ऐसा लग रहा है कि GSTR 9 में आपने ठीक कर लिया, पर आपने सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट करी, ठीक नहीं किया, क्योंकि आपके टेबल 9 ऑफ GSTR 9 में वो डिफरेंस खड़ा रहेगा। पेबल आपका दिखेगा IGST में और पेड एक्स्ट्रा दिखेगा C और S, ये डिफरेंस खड़ा रहेगा, मतलब सामने सामने दिखेगा, भैया स्वैपिंग हो चुकी है, वो आपने ठीक नहीं किया अभी तक। अभी क्वेश्चन आता है कि आज सेक्शन 77 एप्लीकेबल होगा, तो सर सेक्शन 77 का सेक्शन हेडिंग एक्ट में से मैं पढ़ता हूं, तो वो बोलता है वेयर इट इज हेल्ड that
टैक्स हैज बीन रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट। 3 शब्दों का हम फोकस करेंगे। इट हैज बीन हेल्ड, सेकेंड रॉन्ग हेड में टैक्स का कलेक्शन हुआ है और रॉन्ग हेड में पेमेंट हुआ है। तो हेल्ड तो सर मुझ पे कोई आरोप लगाएगा तो वो तो आरोप लगाने वाला मुझ पर हेल्ड करेगा ना, कि इट इज हेल्ड इन द ऑर्डर दैट दिस इज द मिस्टेक दैट यू हैव डन। पहला, हेल्ड होने के लिए किसी को आरोप लगाना है, तब जाके मैं उस पर प्रत्यारोप में डालूंगा। दूसरा, मिस्टेक शुड बी ऑफ रॉन्गली कलेक्शन एंड पेमेंट। हियर आई सपोज आपका कलेक्शन आपने सही हेड में किया आईजीएसटी में, पेमेंट आपने रॉन्ग कर दिया, तो सेक्शन 77 पर से यहां पर अट्रैक्ट नहीं होता है, विच टेल्स यू टू पे C+S एंड क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी। हाँ, हेड की मिस्टेक हुई है, वो हेड की मिस्टेक को मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। आपको टेबल 9 जीएसटीआर 9 में ठीक करना था तो टेबल 11 का सहारा लेना था, जो आपने फाइल कर दिया, नहीं किया है, 18-19 के लिए पूछ रहे हैं, तो टेबल 11 का आप सहारा लेके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक कर देने से जीएसटीआर 9C, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपका है कि 9C में अपने को एज एन ऑडिटर क्या देखना है, तो आप 9C में एज एन ऑडिटर टेबल नंबर 5 से लेके टेबल नंबर जो ऑडिटर्स रिकमेंडेशन है, देयर इज नो टर्नओवर रिकॉन्सिलिएशन डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस, नहीं आएगी। ठीक है सर। बट आप वहां पर बुक्स की लाइबिलिटी भी लिखोगे C+S और 9, आपकी ऑडिटर के हैसियत से ये जिम्मेदारी है कि वो जो राम कथा जहां लिख सकते थे ना ऑडिट ऑब्जर्वेशंस में, वहां जाके इस फैक्ट को ऑडिट ऑब्जर्वेशन में स्मार्टली नोट कर दें, जिससे आपके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं उठे और ये भी क्लियर हो जाए कि इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन इफ यू हैव नॉट टेकन केयर इन टेबल 11। नहीं तो आप टेबल 11 में ठीक करिए, टेबल 4 से ठीक नहीं होता है, टेबल 4 से एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक होता है। अभिषेक जी, ओवर टू यू। डन सर, एम्पली क्लियर है गेस। भरत जी आप बताइए। सर चीज तो सही है, लेकिन अगर अमाउंट बहुत ह्यूज हो तो दे भी नहीं सकते ना पेमेंट। तो सर वो तो मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 provisioning- रुपया तो भी नहीं देना है। सर वो बोल रहे हैं पेमेंट देना भी नहीं है, आपको ऐसा जी। करना है कि आप अभी एक बात बताइए, टेबल 9 जीएसटीआर 9 भर चुके हैं या नहीं भरे हैं? फाइल हुआ है कि नहीं? नहीं, अपने पास दोनों केस है, फाइल भी हो चुका और भी क्लाइंट ऐसे हैं हो जो चुका के है, फाइल नहीं हुआ अभी तक। जो हो चुका है उसके लिए तो अपन बाद में बात करते हैं सर। जो नहीं हुआ है उसके लिए आपको बताता जी हूँ सर। कि जीएसटीआर 9 में आप एक ऐसा काम करिएगा कि टेबल नंबर 4 वहां पे आपकी जो एक्चुअल लाइबिलिटी होती है CS और I की, वो दिखा दीजिए जैसा आपको देना। सॉरी, जो आपने भर रखा है 3B में, आपने जो पेमेंट कर गलत भर रखा है वो जो दिखाओ। सही है जी। जो गलत नहीं, जो सही है वो नहीं, जो गलत है वो दिखाओ। जो गलत है वो टेबल 4 में दिखा दीजिए। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको आईजीएसटी देना था 1 करोड़ रुपए का, आपने C और S दे दिया 50-50 लाख, तो आप टेबल 4 में C और S 50-50 लाख दिखा दीजिए पेबल है। और टेबल 9 में क्या होगा कि पेबल आएगा 50 लाख और पेड भी आएगा 50 लाख, कोई डिफरेंस नहीं आएगी। अब आप चले जाइए टेबल नंबर 10 में, 11, टेबल 10 and 11 both, 10 11 both। अब फर्स्ट 10 में आप लिख दीजिए कि आपने अगले साल आई दे दिया, यानी आई के ऊपर आप 1 करोड़ रुपया बढ़ा दीजिए। और 11 में आप C और S में 50-50 लाख डाल दीजिए कि आपने अगले साल 50-50 लाख कम कर दिया। और आने वाले साल में नेक्स्ट 3B में आप ऐसा करें कि आपकी जो एक्चुअल लाइबिलिटी C और S की बनती है उसकी जगह 1 करोड़ रुपया आई जमा कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगी, चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है सर? जी सर। और सर 9 से अपने ऑब्जर्वेशन में लिख दिए चीज। सर अगर ये 9 में आप ऐसा कर लें तो ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तब तो ठीक हो जाएगा। ठीक आप है सर। समझिए फिर 9 तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं देना। बट सर अभिषेक जी, इसमें एक जी। इशू है कि अगर मेरा अगले साल का 3B नहीं है, इनका C और S का लायबिलिटी रहेगा, ये बोल रहे हैं इनका रहेगा। वो आपको उतना ध्यान देना है कि 1 करोड़ अगर अपन आईजीएसटी दिखा रहे हैं कि डिस्क्लोज इन नेक्स्ट ईयर, उतना एक्चुअल में भी होना चाहिए 3B में। एक्चुअली रहेगा। भरत जी आपके पास होगा ही, जो आदमी कर ही रहा है 2 साल से। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और भी था। 17-18 फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट छूट गया था। 18-19 फाइनेंशियल ईयर में अपने जीएसटी रिटर्न में तो शो कर दिया 3B पे,
उसका इफेक्ट अकाउंट्स में कहीं भी नहीं आ रहा है। सर आपने इशू किया कि आपको मिला? मिला, क्रेडिट नोट मेरे को मिला। मतलब आपकी इनपुट आपको रिवर्स करनी चाहिए थी, जी सर, 1780 में रिवर्स करनी थी 3B पे। आपने कर दिया? नहीं किया, नहीं किया? 1819 पे किया है। 1819 में कर दिया तो रिवर्स कर दिया, जी सर, हाँ हाँ कर दिया। तो 3B में मेरा इनपुट कम हो जा रहा है, ठीक है। ITCS पर 3B मेरा कम है, इस पर मेरा आपने लेकिन क्रेडिट नोट ले लिया ITCS पर है। अकाउंट्स मेरा मैच नहीं कर रहा है 9C पे। सर मतलब बुक्स में ज्यादा दिख रहा है और 3B में कम लिया है। हाँ सर। सर खुशी की टेंशन बात क्या है है? सर, खुशी की बात है। लिख दो सर सर वहाँ खुशी बात है, 9C में रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रहा आपका। डिफरेंस आएगा ना, वहां पे लिख देना कि क्रेडिट जितना एलिजिबल था उससे कम लिया हमने। नहीं सर एलिजिबल हाँ, था। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, वो तो रिमार्क्स में देना होगा। हाँ सर रिमार्क्स में, सर रिमार्क्स देना, एक बात समझिए, मैं आपको फिर बता दूं, 9C जी में रिमार्क्स या क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन जी का वो मतलब नहीं है जो हम ऑडिट वाले बुक में पढ़ते हैं, क्वालिफाई कर दिया। देयर इज नो क्वालिफाइड रिपोर्ट इन जीएसटी। there may be some observations of the auditor and still the audit report may be clean. तो आप क्वालिफिकेशन या रिमार्क या डिस्क्लेमर देने से बिल्कुल घबराइए मत, हमें जो मन हम वो लिख सकते हैं। वो एक्सप्लेनेशन है कि अगर मेरे पास कोई अनरिकंसाइल्ड आईटीसी आ रहा है तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक क्रेडिट नोट थी जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करनी छूट गई थी, अगले साल ले ली गई है, मगर हमने ईमानदारी से क्रेडिट पहले ही रिवर्स कर दिया। जी सर उल्टा सिचुएशन होता तो आपको उल्टा- चिंता करना चाहिए था। ये तो आपने कम लिया, जीएसटी डिपार्टमेंट का जितना उसको दिख रहा है उससे तो कम ही लिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जस्ट जी सर, डिस्क्लोज इट प्रॉपर्ली। थैंक यू गगन जी, थैंक यू अभिषेक जी। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर। दिवान सर ओवर टू यू अगेन। सर मैं एक जनरल कंसेशन वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ गगन जी से, सर क्या पूछ सकता हाँ हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। सर जीएसटी ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड होगी, बट नहीं हो तो मेरे पीछे आप लोग डंडा लेके मत पड़ना। मैं बोल रहा हूँ सरकार का इकोनॉमी सुधारने का ये एक मेजर्स हो सकता है कि कोई भी ड्यू डेट्स आरओसी के और सबको एक्सटेंड मत करो, सबसे लेट फी कलेक्ट करो, उसी से इकोनॉमी जो 23% गिरा है जीडीपी वो सुधारेंगे हम। सर नोटिफिकेशन कब इशू करवा रहे हैं सर? 30 को होगा, 28, 29, 30, उसके पहले तो नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर क्योंकि इसका ना दूसरा एक पर्सपेक्टिव आप ये समझो, आप जितना डिले करोगे लोग अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे और टैक्स का पेमेंट भी करेंगे जितना छूटा हुआ है, तो सरकार के कलेक्शन हो रहे हैं ना, अभी कर देंगे तो 10 दिन में कलेक्शन कुछ भी नहीं होगा। However, I disagree with this point. मैं 9 और 9C दोनों भर सकता हूँ बिना टैक्स पेमेंट किए। मैं टैक्स पेमेंट अंडरस्टैंड, करने के डर से कभी मैं समझ गया सर, बट आप ऐसे तुमको किसने बोलने गया था, क्या बोलने गया था? बात कर रहा था ना, मीटिंग में था हम वो चलिए म्यूट कर दिए हैं। हाँ सर, तो 90% ऑफ द केसेस में जब आप ऑडिट क्लोज करते हो और कुछ टैक्स पेमेंट आता है तो आप कोशिश यही करते हो कि इसको अभी पे कर कुरा के डीआरसी 3 से सेट ऑफ करके उसकी फैक्ट भी मेंशन कर दो 9C में, ताकि मैटर क्लोज हो, अनलेस कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो। दिवायंदा से रिक्वेस्ट है सर, आप कुछ करिए और डेट को एक्सटेंड कराइए। हाँ सर, दिवायंदा और सुमंत्रोदा आप भी है, आप लोगों के हाथ में है ये सारी चीजों का बागडोर, आप संभालो इसे। आईसीएआई का तो रिप्रेजेंटेशन गया ही है। हाँ थोड़ा और आईसीएआई का फुल फ्लेजेड जाना होगा सर, एक बार शायद आपको भी एक बार दिल्ली घूम के आना होगा सर। एक्चुअली आप लोग को तो पता ही है, जितना भी कोशिशें किया जाता, कोशिशें होती हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट है कि लास्ट डेट या वही एकदम एंड में जाके सब कुछ करती है। आई हैव सीन ओनली वन एक्सेप्शन व्हेन पीयूष गोयल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक 23 जुलाई को ही 31 जुलाई वाज एक्सटेंडेड टू 31 अगस्त फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स, बट इसके अलावा आई हैव नेवर सीन एन एक्सटेंशन जनरली कमिंग इन। इस कोविड में हम लोगों ने कुछ चीज देखा कि पहले से हो गया था, बट देन वी हैव टू वेट। अभी हुआ नहीं सर हमारे लिए। इवन हम लोग एजीएम के लिए भी देखे ना फॉर कंपनीज, पहले ये 17 अगस्त दे ब्रिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिस, देन दे अगेन चेंज देयर माइंड इन 20 डेज। तो इनको समय लगती है समझने में, तो दैट वी कैन नॉट हेल्प। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू देवानंदा, थैंक यू सर। So there is no more question in the chat box, and I haven't seen anyone raising their hands to ask a query.
So can I conclude that there is no more question? सर ऐसा सिचुएशन दो ही केस में हो सकता है, या तो अभिषेक जी ने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, या हमने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है जो समझ भी नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस नहीं है. आई डू नॉट नो, बट मुझे लगता है अभिषेक जी का एक्सप्लेनेशंस काफी था. मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और कोई क्वेरी है. ओनली वन क्वेरी, rather a request to share the PPT was there by CA Surajit Sengupta. सर मैं आपको दे दूंगा, एंड इफ रिक्वायर्ड ना आई विल आल्सो गिव यू दैट एक्सेल शीट जो अभिषेक जी और हम लोग मिलके बनाया, जिसमें हम लोग 25-30 केसेस डिस्कस किए हैं कि पिछले साल का एडजस्टमेंट इस साल कैसे. वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, इसलिए मैं आज वो डिस्कस नहीं कर रहा था. आई विल शेयर विद इट इफ इट इज ऑफ एनी हेल्प आप लोगों का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं. I'll be sharing it with the participants of this program. Thank you, Gagan ji. थैंक यू सर. So I would request CA Anindya Basu to please unmute himself. Anindo da. Yeah, the one. Tell me. Yes. So I would request the treasurer of the Salt Lake City Chartered Accountants Association, CA Anindo Basu, to kindly give the formal vote of thanks. Firstly, I would say that it was a. Can you hear? Can you hear me? Yes. Yes. Audible. The queries of Gagan Kedia and Abhishek, that no more questions and not a big question answer session. What I'd like to say that it was a fantastic question answer session between the two speakers actually. So they have resolved such all the queries of the audiences that there is nothing much to ask by the audience. So that is a basic reason that there are a few questions in hand for all of us. So it was a fantastic interactive sessions, I would say. And thank you both the speakers for this excellent presentation. And we have covered a lot of in-depth topics and complications coming up in GSTR 9 and 9C, and how as an auditor we should represent them. And it was a very fantastic deliberations by both of you. And so on behalf of the study circle, I would like to thank both of you for these fantastic presentations, and we look forward for more of such in coming future. Thank you so much, both Gaganji and Abhishekji. Thank you. So much, sir. On Gaganji's idea, this was an experiment by us. We let us make it. On the... It was a fantastic deliberation by both of you. Thanks so much. Thank you so much. So we will surely come up with more programs on various topics of interest to members. So with this, we have come to the end of this program. I also acknowledge the presence of CA Ashwini Kundu, past convener of the Salt Lake City Chartered Accountants Study Circle. And only before I end this meeting finally, I would once again request the Ashwini sir has also switched on his video. Sir, would you like to speak something? You can unmute yourself and speak if you want. And you have to unmute yourself, sir. Unmute korte ho.